हैं पुष्पेंद्र जी, सुरेश जी, अगर आप अनुमति दें। Yes, yes. Sorry. Sure. So namaskar everyone. My name is Vivek Singh. I'm joining you all from Sydney, and on behalf of Hindu Council of Australia, I welcome you all. So we have gathered here today to commemorate a very dark chapter in Indian history, the Kashmiri Exodus Day, the Kashmiri Pandit Exodus Day, a very dark day indeed. I see that a lot of friends have joined us from all over Australia, from Canberra, Perth, Sydney, Adelaide, Brisbane, which is very encouraging for the cause. And for discussing such an important subject, we have a very esteemed panel of guests among us. So we have Shri Pushpendra Kulshrestha with us. We have Shri Suresh Chawanke. Both of them don't need any introduction, but I'll still give it a try. And in the meantime, Shri Ashish Dharji will also joining in a while. So I'll introduce them subsequently. So I begin with introducing Pushpendra ji. So Pushpendra ji, thank you so much for joining us today. And I know it was a little last minute. Apologies on my behalf that I couldn't inform you earlier. So Pushpendra ji, as I said, does not need any introduction. So he's a well-known journalist, a political commentator. He's expert in Islamic terrorism, Kashmir, and Muslim communalism. He was born in AMU in Aligarh. He did his schooling from Lord Minto Circle School in AMU itself. He did his graduation in political science from AMU, and then subsequently he obtained a postgraduate diploma in journalism from AMU itself. He has worked with various publications and media channels. So he has worked with Sunday Mail weekly newspaper. He has worked with Sahara TV News, Z News, BBC World Service. And interestingly, he has also worked with Pakistan's first private news channel, Aaj TV News, as its India correspondent. Uh, and he has, besides being a journalist, he's an avid hockey player. So he has also played 7 times in National Roller Hockey Championships. And he has also served 4 times as elected Secretary General of Press Club of India from August 2006 to October 2010. Namaskar once again, Pushpendra ji, swagat aapka. Then we have Suresh Chawanke ji with us for the second time. Suresh ji, namaskar. आपसे बात हुई थी हमारी कुछ समय पहले यूपीएससी जिहाद को लेकर काफी अच्छी चर्चा हम लोगों ने की. उसके बाद आप दूसरी बार हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. सो सुरेश जी का भी इंट्रोडक्शन का कुछ ऐसी आवश्यकता तो नहीं है, बट फिर भी थोड़ी कोशिश करता हूँ. एज वी ऑल नो, ही इज द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड आल्सो द एडिटर इन चीफ ऑफ द सुदर्शन न्यूज चैनल. And he is also the anchor for the very famous and very popular show Bindas Bol on his channel. हमने अपनी चर्चा में कुछ महीनों पहले जिक्र किया था यूपीएससी जिहाद का, वो बिंदास बोल का प्रोग्राम, जिसको बैन भी किया गया गवर्नमेंट के थ्रू, कोर्ट्स के थ्रू, अलग अलग एजेंसीज के थ्रू. बट फाइनली सुरेश जी ने जो अपना वेल रिसर्च्ड एक प्रोग्राम था वो हम सबके सामने रखा, और आज भी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर वो अपने विचार हमारे साथ रखेंगे. सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार. Initially, Major Gaurav Ware was also supposed to join us, but unfortunately, he won't be able to make it today because he called me and mentioned that he is in interior parts of the Kashmir Valley right now with limited internet connectivity. So he has apologized for his absence, and I told him that he'll be sorely missed. We were all looking forward to hear from him, but nevertheless, we have a very esteemed panel, as I said, who will be sharing their thoughts, and let's hear from them. So Suresh ji, शुरुआत आपसे करते हैं. भाषा का कोई यहाँ पर ऐसा कुछ रूल नहीं है जहाँ पर आप इंग्लिश हिंदी जिस भाषा में आप बात करना चाहें कर सकते हैं. हमें अच्छा लगेगा आप हिंदी में बोलें. तो शुरुआत करते हैं सुरेश जी इस बात से कि एक ऐसा इवेंट, हिंदुस्तान का, आजाद भारत का एक पहला ऐसा एक्सोडस, या कहीं एकमात्र ऐसा एक्सोडस किसी एक कम्युनिटी का जो उनकी एथनिसिटी के ऊपर बेस्ड था, वो हुआ. उसके बाद एक ऐसा काला अध्याय भारत के इतिहास में जुड़ा जिसको आज तक हम भुला नहीं पाए. आज 30 साल उस हादसे को हो गए. तो इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, आप क्या हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? पहले तो आदरणीय पुष्पेंद्र जी, आप पूरी टीम जो विदेश में बैठकर भी हिंदुस्तान के लिए, जिनके हृदय में हिंदुस्तान ही धड़कता है, दोनों ही होता है, और इसलिए विभिन्न समय पर आप लोग जो चिंता करते हैं, इसके लिए आपका मैं पहले आभार व्यक्त करते हुए अपने विचारों को रखता हूँ. आज आप कश्मीर से जो हिंदुओं को निष्कासित किया गया, उसका दिवस हम मना रहे हैं. लेकिन हम ऐसे दिवस कब तक मनाएंगे, और हमारे दिवस मनाने की शैली को नहीं बदलेंगे तो हमको फिर
ऐसे भी दिवस मनाने पड़ेगी कि बंगाल से निष्कासित हिंदुओं का दिवस मनाते हैं, फिर केरला से निष्कासित हिंदुओं का दिवस मनाते हैं, फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कैराना से निष्कासित हिंदुओं का दिवस मनाते हैं। हिंदुस्तान में 1000 से ज्यादा ऐसे मिनी पाकिस्तान है जहां से ऑलरेडी हिंदू निष्कासित हो ही चुका है। और कश्मीर क्या हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो फिर बंगाल से निष्कासित हिंदुओं का दिवस मनाना चाहिए। पाकिस्तान से आज भी निष्कासन जारी है, सबसे बड़ा निष्कासन, विश्व का सबसे बड़ी हत्याएं और जो विभाजन के समय हुआ था उसको 14 अगस्त को हम मनाते ही हैं। तो हम उन महापुरुषों के वंशज जिन्होंने विश्व पर राज किया, बुद्धि से भी और राज्य से भी, सामर्थ्य से भी, तलवार से भी, उनके वंशज को हमको हो क्या गया है कि हम केवल दिन मना रहे हैं और 30 साल से दिन मना रहे हैं। मैं तो 5 साल पहले कश्मीरी भाइयों के, कश्मीरी हिंदुओं के एक बड़े कार्यक्रम में गया था, सारे संगठनों ने मिलकर किया था। तब मैंने उनको यही प्रश्न पूछा था कि आपकी तो पहली पीढ़ी जो आपके पिताजी और उस समय जिनकी उम्र 30 साल होगी, अब तो 60 हो गए, अब उनके लिए तो ये विषय करीब करीब समाप्ति की दिशा में है। आपकी दूसरी पीढ़ी जिसने बचपन में ये सारा निष्कासन देखा है, उनके लिए ये अभी भी मुद्दा है, लेकिन अब 20 साल बाद आप भी बूढ़े हो जाएंगे, आपके लिए भी ये मुद्दा समाप्त हो जाएगा। तो क्या हम ऐसे ही दिन गिनते रहेंगे और हमारे हाथ से एक एक राज्य, एक एक क्षेत्र जो कि यूरोप के देशों से बड़े बड़े आकार के भूभाग को हम हमारे देश से ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। तो दिन हम मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमको याद रखना है कि हमारे साथ क्या हुआ है। लेकिन हम केवल अब तक क्या हुआ उसके लिए रोते रहेंगे या किसी ठोस उपाय के साथ एक एक्शन प्लान लेकर हम बात करेंगे कि इस तारीख तक हमको ये चाहिए, नहीं होता है तो हम ये करेंगे। किसी दिन तो हमको हमारा एजेंडा डेडलाइन के साथ सरकारों के सामने रखना पड़ेगा, नहीं तो मित्रों, भले ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हो, इतना महापुरुष, इतना ऐसा शायद ही हमको आने वाले दिनों में मिले, क्योंकि आने वाले दिनों में तो हिंदू इस संख्या में घट रहा है कि शायद ही उसके बाद अब हमको कितने वर्ष और प्रधानमंत्री हिंदू मिलना है, इस पर भी सोचना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में मोदी जी जैसे महापुरुष के प्रधानमंत्री होते, लौह पुरुष, आधुनिक लौह पुरुष अमित शाह जी जैसे व्यक्ति के गृह मंत्री होते, और आज हम देश में इतने संख्या में होते हुए भी अगर हम केवल विक्टिम कार्ड, अगर हम केवल रोने का काम, हम केवल ऐसा हुआ था, इतना तक सीमित है, विदाउट एनी एक्शन प्रोग्राम विद डेडलाइन, तो फिर मुझे लगता है कि फिर हम तो इतिहास होने वाले हैं। हम हमारे इतिहास की गलतियों से कोई भविष्य का नव हिंदुस्तान बना पाएंगे, ऐसा नहीं है। ये केवल आप आयोजकों को मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें हम पूरा हिंदू समाज आता है, क्योंकि हम सब लोग मिलकर यही तो कर रहे हैं पिछले 30 साल से। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कश्मीरी हिंदुओं के विषय में कहा कि अब तो सबूत भी नष्ट हो चुके होंगे, अब इस केस को क्या सुन सकते हैं, और उन्होंने इसको सुनने से मना किया। लेकिन इससे भी पुराने मामलों को सुनने वाले देश के सुप्रीम कोर्ट को हम इसके लिए मजबूर नहीं कर पाए कि वो कश्मीर पे सुने। सरकार, कोर्ट तो छोड़िए, ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, राजतंत्र की निंदा करने वाले में लोकतंत्र क्या कर रहा है। हमारे पूरे तंत्र में हिंदू विरोधी सिस्टम लगी हुई है, और इस पूरा जो हिंदू विरोधी तंत्र है ये हमको न्याय दे सकता है क्या? हमको इस तंत्र में दुरुस्त करके कुछ मिलेगा या इस तंत्र को बदल के मिलेगा, और फिर दोहराता हूं कि किस डेडलाइन तक मिलेगा। ये अगर हम तय नहीं करेंगे तो फिर हमारे ये सारे प्रयास टोकन स्वरूप के हैं, और कोई भी युद्ध टोकन के स्वरूप में लड़कर जीता नहीं जा सकता। वो एक लक्ष्मण रेखा को पास करके ही जीता जा सकता है, और उसका अंतिम लक्ष्य विजयी पताका फहराना होता है। हमारे इन तमाम सारे एग्जोडस की या सारे निष्कासन की या सारे, हम तो पराजित ही है ना, वहां से हमको निकाला तो हम उस भूभाग में तो पराजित ही है। तो हमारा विजय वास्तविकता तभी होगा जब हम वहां दोबारा जाकर बैठेंगे। तो ये हम कब बैठेंगे, उसका दिन क्या है, उसके लिए हम जो योजना बना रहे हैं, क्या वो तंत्र इसको स्वीकार कर पा रहा है? हमारे साथ पुष्पेंद्र जी जैसे विद्वान भी आज है, और आप लोग भी इतने सारे दूर बैठकर जब चिंतन करते हैं, समय निकाल कर इस पे जुड़ रहे, तो आप लोगों ने भी कुछ सोचा होगा। मेरा इस जुड़कर केवल एक ही आग्रह, जुड़कर मैं जो कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि टाइम लाइन की ये डेट, और अब इस डेट तक हमको ये चाहिए,
अगर आपके रास्ते से नहीं मिलेगा तो फिर हम हमारा रास्ता तय करेंगे कि हमको क्या करना है। तो ये हम तय कर पाए, इस वर्ष तय कर पाए तो शायद हम जल्दी उसको पहुंच पाएंगे। अन्यथा अगले साल आप फिर मुझे निमंत्रित करेंगे, पुष्पेंद्र जी को करेंगे और किसी को करेंगे, या हमें नहीं करेंगे तो और किसी को करेंगे, फिर यही बातें होंगी। हम सारे आंकड़े दोहराएंगे कि हमारे इतने लोग निकाले गए, हमारे साथ यह अन्याय हुआ। हम हमारी वो स्टोरियां चलाएंगे, फिर इमोशनल होंगे, फिर बदल जाएंगे, फिर अगले किसी दिन के लिए हम यही बातें करते रहेंगे। ऐसा करना है या किसी दिन इसी पीढ़ी ने जो इस वक्त सुन रही है इस वेबिनार में, और इस प्रकार के कल 19-20 तारीख तक सारा विश्व भर में जो सारे हिंदू इस दिन को मनाएंगे, वो किसी डेडलाइन तक पहुंचेंगे, ये तय करना है। जो सब मिलकर डेडलाइन बनाएंगे, उसके लिए साम दाम दंड भेद, इन सब चीजों के साथ सुरेश चौहान के पूरा सुदर्शन चैनल आपके साथ है। ये तय करिए। हम सब कुछ निर्भरता अगर सरकारों पे छोड़ेंगे, सारी निर्भरता अगर हम कोर्ट, न्यायतंत्र और उन पर छोड़ेंगे, कभी होने वाला नहीं। दुर्भाग्य से पिछले 70 सालों में इस देशवासियों के इच्छा, अपेक्षाएं और योजनाओं के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है। हो तो रहा है, उन्होंने क्या प्लान किया है उस आधार पे हो रहा है, क्योंकि उनके पास सैकड़ों साल का प्लान है। वो भारत में आता है और कहता है 2002 में कि हमने पहले शताब्दी में यूरोप को ईसाई बनाया, दूसरे शताब्दी में हमने अफ्रीका को बनाया, और तीसरी शताब्दी में मतलब जो चल रही है इसमें हम एशिया को बनाएंगे। हिंदुस्तान के अखबार उसकी हेडलाइन बनाते, कोई विरोध नहीं होता। भाई उनके पास तो शताब्दी का प्लान है, हमारे पास शताब्दी है क्या? हमारे पास तो 10-15 साल बाद हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मुसलमान होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में कश्मीर और हम क्या क्या वापस ले पाएंगे, या जो है वो भी खो देंगे। हमारे कई आज इस विचार के राष्ट्रवादी हिंदूवादी विचार के लोग तो कहने लगे कि भाई जो बचता है वो रख लो और विभाजन कर को दूर करो। क्या फिर हम ऐसा करेंगे? मैं तो नहीं करूंगा। मैं तो 1 सेंटीमीटर भूमि भी देने के लिए तैयार नहीं हूं, भले गर्दन उतार कर देनी पड़े, शरीर के खून का अंतिम बूंद देनी पड़े, लेकिन हम इसके लिए लड़ेंगे। और लड़कर ही युद्ध जीते जाते हैं, ध्यान रखिए। ये पेपर पर और भाषणों पर युद्ध नहीं जीते जा सकते। आप भाषणों से अपनी सेना को, अपने योद्धाओं को कितनी प्रेरणा दे सकते हैं, जो शत्रु को पराजित करने की क्षमता अर्जित करे, पराक्रम करे, विजय प्राप्त करे, वो भाषण है तो उपयोग है। अन्यथा रुदाली के लिए विश्व में रुदाली करने वालों को कहीं पर भी याद रखा नहीं जाता है। आप स्वयं याद सोचिए कि दुनिया के ऐसे निष्कासित कितने लोगों को आप जानते हैं, कितनी सभ्यताएं समाप्त हुई, लेकिन आज हिंदू सभ्यता, हिंदू समाज, हिंदू लोग, आज हम जितने बचे हुए हैं, इस रास्ते से तो हम बचेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। समस्या हम सब जानते हैं और इसलिए मैं उस पर ज्यादा बात करने की दिशा है। आप सब बुद्धिजीवी मिलके, देश के हिंदूवादी लोग मिलके, मैं आजकल किसी भी समस्या पे जब भी बात करता हूं तो कहता हूं कि उपाय की दिशा में बात करिए। तो उपाय के लिए एक लक्ष्य तय करना पड़ेगा। वो लक्ष्य क्या डेट हो? क्या हम ये कह सकते हैं कि देश की तथाकथित स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ हिंदुस्तान मनाने जा रहा है 2.5 साल बाद? क्या हम ये तय करें कि उस दिन तक कश्मीरी हिंदू को कश्मीर में सरकार नहीं बसा पाती है तो देश का 100 करोड़ हिंदू समाज उनको बसाने के लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़े वो अपनाएगा, लेकिन वहां जाकर बसाएगा, बसेगा, उनके साथ वहां जितने समय तक सुरक्षा के लिए रुकना पड़े रुकेगा। ऐसा कोई एक्शन प्लान हम ले सकते हैं क्या? मुट्ठी भर किसान के नाम पर गद्दार लोग यहां पर आते हैं और किसान के प्रति जो भावना, आदर, सम्मान हिंदुस्तान के मन में, उसको हाईजैक करके दिल्ली को बंधक बनाते हैं। वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए कामयाब होते हैं। कम से कम 9 मीटिंगें उनके साथ सरकार कर चुके और 10वीं के लिए तैयार है। मीडिया उनको स्पेस दे रहा है और हम हमारी बात को हम ही बोलते हैं, हम ही सुनते हैं, हम ही रोते हैं, हम ही अपनी आंखें पूछते हैं और फिर अगले साल के लिए फिर कहते हैं कि फिर मिलेंगे। ये नहीं चलेगा। मुझे लगता है पुष्पेंद्र जी के साथ आप सब लोग मेरे इस बात से सहमत होंगे और ये कोई बहुत लंबी और बहुत शॉर्ट भी डेडलाइन नहीं है। 2.5 साल का मतलब करीब हम 700 और 700-800 दिनों की मैं बात कर रहा हूं। क्या हम 700-800 दिनों की कैलेंडर योजना बनाकर
कश्मीरी हिंदू भाइयों को कश्मीर में स्थायी रूप में बसाने, उनकी अपनी संपत्ति उनको हैंडओवर करवा के देने, उनके अधिकारों को उन तक पहुंचाने। इसके लिए सरकार को जो करना है सरकार करे, हमको जो करना है हम उस पर काम करें, सब मिलकर एक योजना बनाए और एक दिशा में लाए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी को पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं कि उनके स्वयं पिताजी आदिल शाही में सरदार थे, लेकिन बेटे छत्रपति शिवाजी महाराज ने समस्त हिंदुस्तान को इन आतताइयों से मुक्त कर कर हिंदू साम्राज्य बनाने का स्वप्न रखा और अपने कम आयु के जीवन में उसको पूरा किया। और अपने जीवन में जो पूरा किया तो किया ही, लेकिन उनका सपना केवल 76 वर्षों में उनके सिपाहियों ने पूरा करके दिल्ली पर भगवा फहराया। देश से मुगलों की, मुसलमानों की, जितने भी जिन जिन देशों से आए थे उन सबको इस देश से निकाला। जब ब्रिटिशर्स इस देश में दिल्ली पर जब झंडा उन्होंने लगाया तो मुगलों का नहीं उतारा था, भगवा उतारा था। तो शिवाजी महाराज ने देखा हुआ सपना पूरा हो सकता है, जिनके पिताजी मुगलों की सेना में सरदार थे। आज तो हम तथाकथित आजादी में कम से कम हमारा प्रधानमंत्री तो है ही ना, तो क्यों नहीं हम इतनी बड़ी बात सोच सकते? मुझे लगता है कि ये डेडलाइन जम्मू कश्मीर के साथ ही हिंदुस्तान के अन्य क्षेत्रों के लिए भी हमको सोचनी चाहिए और उस डेडलाइन पर काम करना चाहिए। उस डेडलाइन की चर्चा इस कैमरे और मीटिंग में करने की जरूरत नहीं, उसकी चर्चा बगैर कैमरे भी हो सकती है और करनी चाहिए। हमें भी सीखना चाहिए कि कुछ चीजें कैमरे पर बोले और कैमरे के पीछे बोलने की भी कुछ चीजें हो, वहां योजना बने। कुछ लोगों को उसके लिए नामित किया जाए, कहा जाए कि ये मिलकर बनाइए और उनका हुआ निर्णय सब लोग फॉलो करें, तभी तो हो सकता है। और इसलिए ये करने के लिए ईश्वर हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे और इस दिशा में हम आगे जाकर अपने संकल्प को पूरा कर सके, इतनी ही अपेक्षा आज के मैं इस मीटिंग में, इस जूम मीटिंग में और इस समय हमारे साथ जुड़े सब लोगों के सामने रखता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी आपका, आपके विचार रखने के लिए। और आपने काफी ज्वलंत मुद्दा इस बारे में उठाया कि कब तक हम निर्भरता सरकार पर या किसी नेता पर रखेंगे, क्यों नहीं एज अ कम्युनिटी हम लोग आगे आते और इस चीज को उठाते। और इसी से जुड़ी मैं कुछ बातें जैसे मैं रखूं, जैसे ज्यूज की अगर हम बात करें, जो होलोकॉस्ट हुआ था, तो ज्यूज का कोई ऐसा नामी नेता सामने नहीं आता जिसके पीछे लोग खड़े हुए हों। ये लोगों का एक मास मूवमेंट था जो उन्होंने शुरू किया। और होलोकॉस्ट डिनायल आज की डेट में एक ऐसा इशू है कि अगर आप उसको डिनाई करेंगे तो एक क्राइम माना जाता है वहां पर। और अगर आप रीसेंट एग्जांपल देखें, बहुत दूर अगर ना जाए, तो अमेरिका में जो ब्लैक लाइव्स मैटर वाला जो एक मुद्दा उठा था, एक व्यक्ति की मौत जो पुलिस के हाथों हुई, उसको लेके पूरी जनता में जितना रोष हुआ, जितने लेवल पर जिस प्रकार के प्रदर्शन हुए, वहां पर भी कोई 1 या 2 या 3 नेता ऐसे नजर नहीं आते थे। वहां हर जगह जहां पर भी देखते थे तो उस कम्युनिटी के लोग नजर आते थे। तो कहीं ना कहीं आप भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो ये मुद्दा है ये किसी तो नेता के मेरा ये दबाव कहना है कि नेता भी स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं ना, हम में से कोई एक नेता हो तो क्या प्रॉब्लम है? जी बगैर नेता के युद्ध नहीं लड़े जाते। लेकिन ये भी जो आप कह रहे, ये भी होता है, मास मूवमेंट से ही ये चीजें होती है। और जू के पास तो भूमि भी नहीं थी, भूमि उन्होंने प्राप्त की, लेकिन भूमि नहीं थी लेकिन राष्ट्र था, देश नहीं था लेकिन राष्ट्र था। हमारे पास देश है लेकिन राष्ट्र नहीं है। क्या हम सच में राष्ट्र भावना के परीक्षा में पास होते हैं? नहीं होते। और इसलिए जब तक राष्ट्र भावना नहीं है तब तक भूमि अर्थात देश सुरक्षित नहीं रहता। इसलिए विश्व के कई कई देशों के पास देश नाम की व्यवस्था थी लेकिन राष्ट्र नाम की व्यवस्था नहीं थी, तो देश समाप्त हो गया। हमारे पास कम से कम दोनों कुछ मात्रा में अभी है। और इसलिए देश बचाना है तो राष्ट्र को मजबूत करना होगा और वो किसी लक्ष्य के साथ विजय तक पहुंचाना होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। अब मैं पुष्पेंद्र जी से आग्रह करूंगा, पुष्पेंद्र जी अगर आप इस विषय पर अपने विचार रखें और हमें थोड़ा सा एनलाइटन करें। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिसको वहां की सरकार से मान्यता प्राप्त है, इसके पदाधिकारी जनाब प्रकाश मेहता साहब, साहिब परवर्तू साहब, विवेक सिंह साहब, और इस पूरी आज की जो आपने सभा आयोजित की है उसमें मेरे बड़े भाई सुदर्शन चैनल के एडिटर इन चीफ, एक जुझारू पत्रकार, न डरने वाले पत्रकार, और आशीष सिंह साहब जो इस वेबिनार में जुड़े हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। देखिए, इस देश में सच बोलने वाले लोग कम हैं, और जब मैं ये कहता हूं तो मैं उसमें से राजनीतिक लोगों को माइनस कर देता हूं।
मैं ये कहता हूं कि राजनीतिक लोगों का झूठ बोलना, राजनीतिक लोगों का धोखा देना, वो एक लोकतंत्र का चरित्र है, वो पूरी दुनिया में ये होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब समाज में जो लोग राजनीति से सीधे तौर पे संबंधित नहीं होते और व्यवस्था से संबंधित नहीं होते, जब झूठ कॉलेज में, स्कूल में, विश्वविद्यालयों में बुद्धिजीवियों के बीच बोला जाने लगे, तो समझ लीजिए कि वो समाज जो है मरने लगा है। उस समाज के अंदर बीमारी फैल गई है। मैं ये मानता हूं कि इस कश्मीर समस्या, जो आप सब जानते हैं कि 19 जनवरी 1990 को क्या हुआ, जो हुआ वो 19 जनवरी तो उसकी परिणति थी, उसकी तैयारी लगातार चल रही थी, वो आर पार चल रही थी, कोई ऐसा नहीं था। मुझे कुछ लोगों से मिलने का मौका मिला, खासतौर से कश्मीर के वो परिवार जिनके परिवारों में किसी के पिता की हत्या हुई है, और उसमें कश्मीर के जो सबसे, मैं समझता हूं कि सर्वमान लीडर थे और वहां के सबसे बड़े कश्मीरी हिंदू पंडित थे और टॉलेस्ट लीडर माने जाते थे, टीका लाल टपलू। उनके बेटे दिल्ली में रहते हैं। टीका लाल टपलू को जिस वक्त मारा गया 1989 में, आप सोचिए कि वो घर से उठाए गए और फिर बाहर लाए गए, फिर कैसे उनकी आंखें निकाली, फिर कैसे उनके बेटे के सामने उन्हें मारा, ये तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन मैं उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस वक्त टपलू साहब को उठा के अंदर से लाया गया, उस वक्त टीकालाल टपलू के बारे में जब उनकी हत्या हो गई, तो लोग जब अंदर गए तो वहां जाके देखा कि टीकालाल टपलू साहब अपनी मेज पर बैठे हुए कुरान मजीद का कश्मीरी भाषा में ट्रांसलेशन कर रहे थे। ये जिक्र इसलिए करना जरूरी है कि जब कुछ लोग इसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग इसकी आड़ में ये कहते हैं कि कुछ मुसलमान जो थे वो ऐसे हैं, सब ऐसे नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे गिरजा टिक्कू हो, चाहे जस्टिस नीलकांत हो, जिस तरीके से उनको मकबूल भट्ट जो JKLF का चीफ था, जिसने अमीर चंद नाम के इंस्पेक्टर की हत्या की थी, उसकी हत्या में उन्होंने उनको सजाए मौत दी थी, फिर किस तरीके से उन पर सड़क की उनके ऊपर खुलेआम हत्या कर दी गई। और मेरे पास एक छोटी सी किताब है, मैं जब इस किताब को अपने पास रखता हूँ याद करने के लिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी किताब है जिसमें तस्वीरें छपी हुई हैं। एक रमेश कुमार गौड़ साहब थे, उन्होंने भारत माता की जय कहा, और जब उन्होंने भारत माता की जय कहा तो उसकी जबान काट दी, और जबान काटने के बाद कहा कि तू अपना नाम ले। तो वो बेचारा कहता है कि आपने मेरी जबान काट दी, वो बोल नहीं पाता, तो उसे मारते हैं। ये उस शख्स की तस्वीर है जबान कटने के बाद की, ये अभी भी मेरे पास है। ऐसे ही एक LIC के अंदर एक तिवारी साहब थे, वो तिवारी साहब वहां LIC में काम करते थे, और उनको कहा गया कि साहब ये आपने जो बोर्ड पे LIC ऑफ इंडिया यानी लाइफ इंश्योरेंस इंडिया जो लिखा हुआ है, इस इंडिया को उन्होंने ब्लैक रंग से पेंट कर दिया था, और पेंट किया तो तिवारी साहब बाहर निकल आए, उन्होंने कहा ये आप नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए, वो तिवारी जी की तस्वीर है, ये लोग डर जाएंगे। आज के युवाओं को इसलिए बताना जरूरी है कि युवा समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई और ये तमाम सारी बातें, और हमें इतिहास में नहीं जाना चाहिए, हमें भूल जाना चाहिए। अगर भूलना ही है तो फिर समग्रता में भूलो, एक तरफा नहीं भूला जा सकता कि हम अपना दर्द भूल जाएं और दूसरों का दर्द रोज जो है इंडिया गेट पे और शाहीन बाग पे निकलने लगे। तिवारी जी ने जब उनसे मने किया कि आप इसको ब्लैक पेंट ना करें जो इंडिया लिखा है, ये उनको जिंदा जलाने के बाद की तस्वीर है, जिंदा जला दिया सिर्फ इस बात पे। मैं बार बार एक तरफ इशारा करना चाहता हूं हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के तमाम पदाधिकारियों से कि जो सुरेश जी कह रहे हैं कि ये कोई एक या दो घटनाएं नहीं है, ये पिछले 712 से लेकर लगातार चल रहा है। आपको शायद एहसास नहीं हुआ क्योंकि आप जिंदगी को जीने और जिंदगी को बटोरने में लगे रहे, लिहाजा आपने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और धीरे धीरे वो मुगल भी आए, फिर उसके अब्दाली भी आया, तमाम आए, फिर अंग्रेज भी आए, वो चले भी गए, लेकिन अभी तक आप उस सिंड्रोम से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन आज 2020 और 21 के भारत के अंदर भारत के युवा जो संचार क्रांति है उसके माध्यम से उसको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। इसलिए आज देश के अंदर युवाओं के अंदर तमाम सारे हजारों, सुरेश चौहान मौजूद है, सुशील पंडित मौजूद है, ललित अंबरदार मौजूद है, कैप्टन क्या नाम है अपने गौरव आर्या मौजूद है, GD बख्शी मौजूद है, RSN मौजूद है। ये तमाम आवाजें आज इसलिए निकल पा रही हैं कि पिछले कई सौ सालों के बाद भारत के सनातनी हिंदुओं को अपने मन की बात कहने का मौका मिला है। नहीं तो इस देश के अंदर अखबारों में जो नैरेटिव होता था तो उसमें लेटर टू एडिटर तक नहीं आपका छापा जाता था। तो आप सोचिए कि आप एक तरफ
कुरानिक सिविलाइजेशन से लड़ रहे हैं, जिहादियों से लड़ रहे हैं, और इस 70-80 सालों के अंदर एक ऐसी आपने हिंदुओं की वो बनाई है कि वो वामपंथ पे जाकर खड़े हो जाते हैं तो हिंदू के खिलाफ खड़े होते हैं, वो दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं तो वो हिंदू के खिलाफ होते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, जिसकी तरफ बार बार मेरा ख्याल है कि सुरेश भाई ने इशारा भी किया, कि एक बात सच है कि भारत के हिंदू ने कभी अपने पुरुषार्थ पे कम भरोसा किया, अपनी योग्यता और क्षमताओं पे कम भरोसा किया, और हिंदू को लगा कि शिवाजी आ गए हैं अब वो बचाएंगे, अब सुभाष आ गए हैं वो बचाएंगे, अब सावरकर आ गए हैं वो बचाएंगे, अब उसके बाद में फिर सरकार आ गई है तो सरकार तो हमारी है, इनका नाम इंदिरा गांधी है तो ये हमें देखने सुनने से हिंदू लगती है, ये जवाहरलाल नेहरू है, ये मोरारजी देसाई है, ये चंद्रशेखर है, ये वीपी सिंह है, ये तमाम सारी गलतफहमी हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं को है। सवाल यह है कि राजनीति का जो चरित्र होता है वो बिल्कुल अलग होता है। उस चरित्र में मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे, तो वहां कई सारे जो बंधन होते हैं उस बंधनों के अंदर ही काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको राष्ट्र की चिंता है, जिसकी तरफ इशारा किया सुरेश भाई ने, अगर राष्ट्र की चिंता है, राष्ट्रीय मुद्दों को हल करने की चिंता है, तो जरूरी नहीं है कि सारे काम संविधान के हिसाब से भी हो। उस संविधान का ध्यान में रखते हुए भी कैसे आप अपनी हदों में रहते हुए बड़े काम कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं, भारत में धारा 370 और 35A के लिए खूब मुहिम चली साहब, तमाम सब कुछ हुआ। अब अगर ये कहें कि नियमों का अगर हम हवाला दें, तो भारत की पार्लियामेंट में जो अपर हाउस कहलाता है, आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाता है जिसे वहां कहते हैं, तो आप सोचिए कि उसमें तो इस सरकार का बहुमत ही नहीं था। तो भारत के सत्ता में बैठने वाले लोगों को 2014 और 2019 में ये देश के सनातनियों एहसास कराया कि हमने आपको वोट कोई सड़क वड़क बनाने के लिए नहीं दिया है, ये सड़क तो कई सौ सालों से बन रही है, टूट रही है, फिर बन जाएगी, हमें तो गड्ढों में चलने की आदत हो गई है, लेकिन इस राष्ट्र के जो गड्ढे हैं उसे भरने के लिए हमने आपको वोट दिया है। और जब ये प्रेशर रहा तो किस तरीके से सत्ताएं राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जो उनके दबाव और लिमिटेशंस होती है, संविधान होता है, उसको कैसे पार करते हैं। ये बात मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण है। आप बहाना ले तो फिर बहाना तो इस बात का भी हो सकता है कि आज सूरज नहीं निकला तो आज काम नहीं होगा, कल ये नहीं हुआ तो आज ये नहीं होगा। तो आपने भारत के इतिहास में, भारत की संसद के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा बिल जो राज्यसभा में पहले आया, जिस बिल पे लोकसभा में पहले चर्चा होनी चाहिए थी, उसे राज्यसभा में लाए। अब राज्यसभा में क्यों लाए, ये भी अपने आप में एक लोगों को गिमिक है, लेकिन मुझे उसकी बैकग्राउंड पता है और मैं उसे सार्वजनिक कहता हूं, मुझे कोई उसमें, क्योंकि वो बात अब सरेमंजर हो चुकी है। राज्यसभा में इस सरकार का बहुमत नहीं था, तब भी ये सरकार लेके आई उसमें। और ताज्जुब की बात यह है कि जब शाम कुछ भाषण हो गया गृह मंत्री का और जब उसमें वोटिंग हुई तो सरकार मेजोरिटी से जीत गई। अब मेजोरिटी से जीती तो वो लोगों को ये समझ नहीं आया कि ये मामला क्या हुआ, यहाँ तो इनकी माइनॉरिटी है, जीत कैसे गए, ये बिल पास कैसे हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट डे वो लोकसभा में जाना था, तो लोकसभा में तो उनका जो बहुमत था वो तो खुल्लम खुल्ला था, उसमें तो कोई बात थी नहीं। खुद बीजेपी के 330 सीटें थी और उनके सब साथियों को मिला के 340 थी, लेकिन फिर भी लोकसभा में 370 हटी, 370 के उसके विपक्ष में वोट गया, उसका समर्थन नहीं किया, तो 370। लेकिन अब सवाल यह है कि राज्यसभा के अंदर अगर आपकी राजनीति के शिखर पे जो लोग बैठे हो और उनके मन में ये चिंता हो और समाज पूरी तरीके से उनके पीछे खड़ा हो, तो सरकारें रास्ता कैसे निकालती हैं। तब मुझे पता चला कि 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले जो भारत के अंदर एक व्यवस्था बनी हुई है कि जो भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो समय समय पर उनके डेलीगेशन जाते हैं, कहीं वो म्युनिसिपैलिटी का काम कैसा हो रहा है ये देखने जाते हैं, कहीं पानी की व्यवस्था देखने जाते हैं, ये वगैरह चलता रहता है, ये रूटीन मैटर है। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों को आपका दबाव और राष्ट्र के प्रति उनकी गंभीरता ने ऐसा मजबूर किया कि 1.5 महीने पहले उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा डेलीगेशन जो है वो नीदरलैंड, स्वीडन जाएगा, वहां की जो है सड़कों की और पानी की और इस व्यवस्था को देख के आएगा। अब वो 1.5 महीने पहले प्लान बना और बनने के बाद उनका टाइम भी तय हो गया और वो चले भी गए बेचारे। अब उसमें किसी ने शायद मजाक में उस वक्त पूछा भी कि इसमें ज्यादातर लोग जो विपक्ष के हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो इसलिए वो उसमें शायद कोई सरकार पक्ष का नहीं था। और 2 महीने प्लान बना और उसके बाद उनके लौटने का जो प्लान था उसके आने की टिकट भी ऐसी रखी गई कि जिस दिन लोग राज्यसभा में वो बिल रखा गया उस दिन वो सारे के सारे नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड घूम रहे थे। अब जब पीछे मुड़ के विपक्ष के नेता ने देखा तो पता चला वहां तो सारे लोग गायब हैं।
तो कभी कभी मैं ये कहता हूं कि अब इसे असंवैधानिक नहीं है, अब इसमें कोई ये कहे कि साहब ये तो असंवैधानिक है, मैं कहता हूं कि संवैधानिक है, लेकिन इच्छा शक्ति अगर आपकी होगी तो आप कैसे रास्ता निकालते हैं। इसलिए 370 राज्यसभा में पास हो गई और लोकसभा में सबको मालूम था कि इनका खेल खला खेल फरक्काबाजी है, तो यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं। तो ये बात तो रही कि आप सत्ताओं को कैसे चुनते हैं। दूसरी बात यह है कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर के आज भी मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज भी कश्मीरी हिंदुओं में बड़ा भ्रम है, आज भी कश्मीरी हिंदू उस भ्रम से बाहर नहीं निकल रहे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग चले गए हो, 1990 की त्रासदी देखी हो, उनके बच्चों ने देखी हो, लेकिन आज भी मेरे पास नहीं देखी, वो ऐसा था, वो वैसा था, वो पाकिस्तान से आए थे। आज भी बहुत सारे कश्मीरियों को रहमान भाई पे, असगर भाई पे, यासीन भाई पे बड़ा भरोसा है। तो ये जो सिंड्रोम है कि आप जिन चीजों से लड़ रहे थे, और ये भी मैं बता दूं कि जो आज की जनरेशन है कश्मीर की, उनको पता होना चाहिए कि ये जो 1990 को हुआ 19 जनवरी को, ये उनका 7वां एक्सोडस था, ये 7वां पलायन था उनके इतिहास में कश्मीरी पंडितों के। तो ये नहीं था कोई नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि कैसी कैसी देश में हमारे लोग हैं कि लोग एक गलती करते हैं, जिंदगी में दोबारा रिपीट नहीं करते, लेकिन हम गलती करने के आदी हो चुके हैं, क्योंकि हमारे डीएनए में ये चला गया है कि नहीं, हमें लड़ना नहीं है, दिल जीतना है। तो दिल तो भाई इस देश में पृथ्वीराज चौहान ने भी जीता था, लेकिन हम नहीं बदल पा रहे हैं। तो सब सत्ता बदली है आपने, समाज की बदलने की जरूरत है। और मैं बार बार कहता हूं कि जो बात चौहान साहब ने कहा कि पूरे देश में 1000 से ज्यादा कश्मीर बन चुके हैं, आज भी मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं जो शायद हमारी पूरी टीम ने तैयार की है, सुरेश भाई, कि मई 2014 से लेकर के दिसंबर 2019 तक हमारे देश में कुछ बातें हो रही हैं, और हम ये समझ रहे हैं कि दिल्ली में राहुल राजपूत को मार दिया, अंकित सक्सेना को मार दिया, वहां उसको किसी लड़की को मार दिया। ये घटनाएं तो वो घटनाएं हैं जो दिख जाती हैं, क्योंकि दिल्ली में होने वाली घटना दिखती है। एक पूरा हमने डाटा तैयार किया है, फैक्ट के साथ किया है, एफआईआर के साथ किया है, पुलिस रिपोर्टिंग के साथ तैयार किया है, किस तरीके से ये इस्लामिक कुरानिक ताकतें किस अंदाज में किस ऑर्डर के साथ काम कर रही हैं। हिंदू सनातनी वो सोच ही नहीं पा रहा है, उसके इमेजिनेशन से बाहर है, और वो इतने ऑर्गेनाइज तरीके से है। उसमें हम लोगों ने एक टर्म निकाली है कि ये जो आप देखते हैं कि यकायक राजस्थान के अंदर किसी आदमी ने नरेंद्र मोदी के कहने से थाली बजाई, और उसने तो थाली बजा दी, बात खत्म हो गई। लेकिन पता चला थाली बजाने में उसके मोहल्ले के 5 लड़कों ने मिलकर के उसकी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। अब वो कहीं खबर नहीं बनी, वो अखबार में खबर नहीं आई, लेकिन वो आदमी मर गया, खत्म हो गई कहानी। इसी तरीके से देश में 2014 से लेकर दिसंबर 2019 तक पूरे देश में 182 हिंदू, जिसमें दलित भी है, जिसमें वाल्मीकि भी है, जिसमें यादव भी है, जिसमें ठाकुर भी है, जिसमें ब्राह्मण भी है, 182 लोगों का डाटा विद फैक्ट विद फिगर, किस शहर का था, कब मारा, किस बात पे मारा और क्या उसके साथ हुआ। ये 182 हिंदू इस देश में पिछले मोदी सरकार के आने से लेकर दिसंबर में मरे, लेकिन इनके बारे में चर्चा नहीं हुई। लेकिन एक अखलाक मर गया तो पूरी दुनिया में मॉब लिंचिंग हो गई, सुप्रीम कोर्ट जाग गई, देश के बुद्धिजीवी जाग गए, लोगों ने अवार्ड वापस कर दिए, यूएनओ तक बात चली गई, जेनेवा तक बात चली गई। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप उस प्रवृत्ति को नहीं समझेंगे, उस सोच को नहीं समझेंगे, तो आप सिर्फ स्यापा और रुदाली के अलावा हमारे भाग्य में कुछ नहीं लिखा होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बात चर्चा करें, हमेशा कुछ मुद्दों के माध्यम से बात होती है, लेकिन क्या भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सोडस और पलायन सिर्फ किसी जाति या किसी कम्युनिटी के उसकी पूजा पद्धति और उपासना के कारण ऐसा जघन्य अपराध विद इन द कंट्री नहीं हुआ होगा, और कम से कम मॉडर्न डेज में तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा। वो हुआ, ये देश चुप बैठा रहा, ये देश खामोश रहा, ये देश का मतलब है ये समाज खामोश रहा, और सरकारों में बैठा हुआ गृह मंत्री 2 दिसंबर 1989 को शपथ लेता है वीपी सिंह की सरकार के अंदर, किन दबावों में वो बनाया जाता है। वीपी सिंह मंडल कमीशन लागू करके भारत के हिंदू समाज को तोड़ने में लगा हुआ था, और 2 दिसंबर 1989 को इसी कश्मीर का
ये जो महबूबा मुफ्ती है इसका बाप उस तरीके से भारत का पहला गृह मंत्री बना, और 2 दिसंबर को उसने शपथ ली। 8 दिसंबर को उसके घर के अंदर एक लड़की उसकी गायब हो गई, उसका नाटक रचा गया और अंतरराष्ट्रीय 4 आतंकवादियों को छोड़ दिया गया। फिर गुलाम नबी आजाद के घर में कोई किडनैप हो गया। ये सारी जो किडनैपिंग थी ये ऑर्केस्ट्रेटेड थी, और यकायक फौरन के फौरन 27 आतंकवादी 10 आतंकवादी छोड़े, और 2 दिसंबर को जिसने शपथ ली उसने 19 जनवरी 1990 को भारत की धरती पर उस मूल निवासियों के जो कश्यप ऋषि के असली वंशज थे, उन्हें जिहादियों ने, मुसलमानों ने, इस कुरानिक सभ्यता ने अपने पड़ोसियों के साथ रेप करके, मर्डर करके, हत्याएं करके देश छोड़ने के लिए मजबूर किया और पूरे देश में फैल गए। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं आज जगह जगह जाता हूं, साउथ में गई, तो लोगों को यह घटना पता नहीं। तो ये सरकारों का नहीं है, ये मंत्री का काम नहीं है कि वो ये घटना बताए। वो उस कम्युनिटी को आप लाख गाली दे लीजिए, लाख उसके बारे में कुछ कह लीजिए, हो सकता है कि वो सीओ प्रोड्यूस न करते हो सकता है कि वो मार्च पर न जा रहे हो, लेकिन वो अपने एजेंडे और अपने हितों को समझते हैं। कब कहां किसके साथ संबंध बनाने से, कब कहां किसके साथ बैठने से, कब किस तरीके की बात कहने से हमारा जो लास्ट एजेंडा है वो पूरा होगा। हम तत्कालिक लोग सत्ताओं में आते हैं, आज कश्मीर में देखिए नेता छोटे छोटे कामों में बिजी हैं। आखिर भाग पे भी तो राष्ट्रवादी लोग सरकार में थे, राष्ट्रवादी लोगों ने कभी इस मुद्दे को क्यों नहीं बनाया? राष्ट्रवादी सरकार वहां कितने दिन रही नहीं रही मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये मुद्दा नहीं बना। लेकिन एक आदमी संभल से निकलता है और एक एमपी बन जाता है, लेकिन पूरे दुनिया के, हिंदुस्तान के मुसलमानों को मैसेज देता है। जब मीरा कुमार स्पीकर होकर के वंदे मातरम के लिए पूरे सदन को खड़ा होने के लिए बोलती है, वो उठता है और सबके सामने निकल के जाता है। ये सिर्फ एक शफीकुर रहमान बर्क जैसा दंगाई एमपी नहीं है, ये एक सोच है, ये एक मानसिकता है, ये एक विचार है, और वो पूरी दुनिया को देता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरी एमपीशिप जानी हो तो चली जाए, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। ये सिंबॉलिकली है, लेकिन हमारे यहाँ बड़े बड़े लोगों को देखा है सिर्फ सत्ता में पहुंचने के बाद अपने निजी स्वार्थों को, निजी हितों को, और अगली बार कैसे सत्ता में बैठ जाए, अपने एक मकान की जगह 15 मकान कैसे कर ले, 4 गाड़ियां कैसे कर ले, हॉस्पिटल बन गया है तो उस हॉस्पिटल के अंदर कैसे जुगाड़ कर ले, एक्सप्रेसवे बन गया है तो उसके अंदर। तो इसके अलावा हमने कुछ और किया नहीं। हम एक राष्ट्र के रूप में हमारी सरोकार क्या है, हमारे एम क्या है, हमारा शत्रु कौन है, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए 2014 से पहले इस भारत के अंदर, भारत की राजनीति के केंद्र में मुसलमान था, शिया नहीं था, अहले हदीस नहीं था, अहमदिया नहीं था, देवबंद नहीं था, बरेलवी नहीं था, वो सब मुसलमान थे। और सारी राजनीतिक दलों ने उनको कहा तुम कुछ और नहीं हो, सिर्फ मुसलमान हो, तुम कुरान के मानने वालों हो। जबकि शिया सुन्नी का बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो नहीं माना। लेकिन भारत के हिंदुओं को ये बताया गया भारत की राजनीति में, तुम यादव हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, महादलित हो, ये हो वो हो, लेकिन भारत की राजनीति में हिंदू कभी भारत के राजनीति का केंद्र बना ही नहीं। यानी एक देश की 100 करोड़ आबादी वो केंद्र में नहीं थी। इसलिए कहीं 12%, कहीं 16%, कहीं 2%, कभी 2.5%, जो आता था वो इन ठेगड़ों को निकाल करके अपनी चादर के ऊपर लगा लेता था और कहता था मेरी सरकार चल गई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि आज क्या हो रहा है। एक टर्मोलॉजी तैयार की है हमारे साथी है जयपुर के अंदर, उन्होंने कहा कि आज भी भारत के अंदर ये जो इस्लामिक ताकतें हैं ये क्या करती हैं, रैंडम, अनसीजिंग, लो लेवल, स्कैटर्ड वायलेंस, ये 4 टर्म्स को उन्होंने जोड़ा है। और वो ये कहते हैं कि इस देश के अंदर कहीं भी बिना किसी पैटर्न के, कोई पैटर्न नहीं होता, अकस्मात आप देखेंगे बिना बताए वहां हत्या हो जाती है। अनवरत, अनसीजिंग, यानी अनवरत यानी लगातार चल रही है। अब ये लगातार 7वीं सदी से चल रही है, मीर कासिम से, राजा दाहिर से लेकर के आज तक चल रही है। उसको हम ये कह सकते हैं कि ये अनसीजिंग है, चल रही है। और लघु श्रेणी की छितरी हुई हिंसा, लो लेवल, वो लो लेवल पे करते हैं। पता चला गांव के दूर दराज में किसी हिंदू को मार दिया, पता चला कि कहते वहां किसी को जो है तलवारों से मार दिया। तो ये क्या है कि लोकल लेवल पे, गांव के लेवल पे जब आप किसी एक हिंदू की हत्या करते हैं तो एक तो वो खबर नहीं बनती, और वहां हिंदू इतनी ताकत में होते नहीं कि वो उसका प्रतिकार कर सके, और उस हत्या से एक तरीके से भय का माहौल बनाते हैं। और धीरे धीरे वहां जब वो हत्या हो जाती है तो कुछ लोग टोपी लगा करके भाईचारे की बात करने पहुंच जाते हैं, और वो भी अपनी बातों में इस तरीके का डराते हैं उनको कि पता चला कुछ लोग जमीन बेच के निकलना शुरू हो गए, किसी ने खेत अपना बेच दिया, किसी ने घर अपना बेच दिया, तो वो चलता रहता है।
और उसके अलावा वायलेंस एक होगा, यहाँ यकायक पता चलेगा कि महाराष्ट्र के अंदर किसी को मार दिया, फिर आपको पता चलेगा कि आसाम में किसी को मार दिया, ताकि हिंदुओं के साथ हिंसा करो लेकिन इतनी भी हिंसा न करो कि ये इकट्ठे हो जाए, ये अलग अलग रहें। तो ये इस एजेंडे के साथ आपके साथ 712 से ये हिंसा चल रही है, और वो कश्मीर में भी जारी है, वो दिल्ली में भी जारी है, वो हरियाणा में भी जारी है, वो आसाम में भी जारी है। तो ये हम कहें कि साहब ये हिंसा कैसे रुकेगी? दुनिया में जब समाज कमजोर होता है, दुनिया में जो समाज अपने ऐशो आराम में लिप्त हो जाता है, लालची हो जाता है, तो वो कायर हो जाता है। और कायर समाज हर चीज का प्रतिकार नहीं करता, बल्कि प्रतिकार करने न करने के नए नए बहाने ढूंढता है, नए नए तर्क ढूंढता है। इस सनातनी हिंदू ने पिछले 100, 150, 500 सालों का अगर इतिहास देखें तो हमने तर्क ढूंढ रखा है। हम कायरता इसलिए अपनाते हैं कि कायरता के कारण हमें लगता है कि हम एक्सपोज न हो जाएं, तो हम अपनी कायरता को महानता में कन्वर्ट करके आदर्श की चादर ओढ़ लेते। नहीं नहीं, हमारे तो शास्त्रों में ऐसा नहीं है, यहाँ तो सब प्राणी है, कोई अपनी बात कर रहा है, हम सबका जीवन उसके हाथ में। ये जो हमने भक्ति जो सीख रखी है कि भक्ति में लीन हो जाओ ताकि किसी भी तरीके के डर को नकार दो और सामना न करना पड़े। मैं बार बार कहता हूं, भक्ति करने वालों का काम भक्ति करना है, लेकिन जिनको शक्ति का प्रदर्शन करना है उन्हें भक्ति की बात नहीं करनी है। ये टॉलरेंस इंटॉलरेंस की बात इस देश में होती है, ये सिर्फ हिंदुओं पे लागू होती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या भगवान राम ने जब राक्षसों को मारा तो वो इंटॉलरेंस नहीं थी? क्या प्रभु शिव कृष्ण जी ने जिस तरीके से कालिया नाग को मारा, पूतना को मारा, वो इंटॉलरेंस नहीं थी? लेकिन इंटॉलरेंस हमारे यहां बताई गई है अधर्मियों के खिलाफ। आपको इंटॉलरेंस दिखानी है, पूरी ताकत से दिखानी है, लेकिन हमने समाज ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे सेना के किसी आदमी को सरहद पे खड़े हुए को हम ये कहें कि नहीं तुम्हें अहिंसक रहना है, तुम अहिंसावादी हो, तुम्हें टॉलरेंस दिखानी है। अगर सेना के उस आदमी से जो पुलिस के वर्दी पहने सेना की बॉर्डर पे खड़ा है, क्या हम उससे ये कह सकते हैं? क्या ये कहेंगे कि तुम्हें कब टॉलरेंस दिखानी है, कब इंटॉलरेंस दिखानी है? उसके पास इस बात का मैंडेट होता है कि दुश्मन किसी कोने से निकल के आए, वो दिल्ली का इंतजार नहीं करता, वो डिफेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग का इंतजार नहीं करता है, उसको मैंडेट है। तो सवाल ये है कि हमने इंटॉलरेंस किसको दिखानी है, किसको नहीं दिखानी है? इंटॉलरेंस को और टॉलरेंस में फर्क समझने की कोशिश करें। जो साधु है, जो संत है, जो ईश्वर की शक्ति के साथ लीन है, उसे टॉलरेंस दिखानी है। लेकिन समाज अगर किसी पागलपने की, जिहादी की, जो आपकी गर्दन काटने आया है, उसके प्रति आपको टॉलरेंस दिखाने के लिए किसने कहा है? आप टॉलरेंस दिखाएंगे तो आपकी गर्दन कट जाएगी। तो क्या दुनिया ये पूछेगी कि आप बहुत महान थे, आपने टॉलरेंस दिखाई इसलिए आप मर गए? तो आपने जो नियम आपको नहीं अपनाने थे वो अपना रखे आपने। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि देश, राज और राष्ट्र में फर्क होता है। जो जिसको अभी सुरेश जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ राष्ट्र की कल्पना तो है ही नहीं। हमारे यहाँ तो यह है कि आपने सरकार को वोट दे दिया, सरकार बन गई, सरकार को लगा ठीक है वोट मिल गया, अब जिनका वोट लिया है सरकार उनका पहले काम करती है। तो आपने कभी इस देश में सरकारें, कभी 100 करोड़ हिंदू सनातनियों ने अपने हितों को ध्यान में रख के दिया? क्या कहा आपने कि बाबर नाम का आदमी जो पूरी दुनिया के और मानवता के प्रति इंटॉलरेंट था, अब्दाली इंटॉलरेंट था, औरंगजेब इंटॉलरेंट था? लेकिन आप देखिए कि आज आपको यह पढ़ाया जाता है कि औरंगजेब ने तो यहाँ के टूटे मंदिरों को पैसा देके बनवाया। कितना बड़ा! एक तो आपको जिन्होंने मारा, जिन्होंने लूटा, जिन्होंने बलात्कार किया, जिन्होंने आपके घर परिवार को, उनको तो बताया जा रहा है महान, और जिन्होंने वो अत्याचार सहे वो आक्रांता बताए जा रहे हैं। तो उनका नैरेटिव आज नहीं, आज के हिंदुस्तान में नहीं, वो शुरू से चल रहा है। इसलिए ये चाहे अंसारी हो, चाहे सैयद हो, पठान हो, ये हो सकता है, लेकिन उनके उस नैरेटिव में सब एक साथ खड़े होते हैं। तो आप उस नैरेटिव को तोड़ नहीं पा रहे हैं। लिहाजा आप जब बात करते हैं तो आप बात करते हैं नहीं ये सेकुलर है, ये कम्युनल है, ये इंटॉलरेंट है, ये जो बीमारी है ये हमें पहली हुई है। तो कश्मीर जो हो रहा है, जो हुआ है, वो तो समग्रता में एक बार में हुआ और भारत के पहले मुसलमान गृह मंत्री की देखरेख में हुआ। तो उस पर तो चर्चा है, लेकिन उतनी चर्चा से भी पूरा देश नहीं जागा, पूरे देश में ये बात नहीं फैली। लेकिन मेरा कहना है कि कश्मीर तो इस देश में हर दिन हो रहा है, हर दिन हो रहा है, इस देश के किसी न किसी जगह हो रहा है। और अब तो आपकी लड़ाई लड़ने वाले जो लोग हैं,
चाहे अर्नब गोस्वामी हो, चाहे सुरेश के चौहान साहब हो, या और दूसरे लोग हो, अब तो उनको निशाना बनाया जा रहा है। और वो कितने शातिर लोग हैं कि उस पूरे खेल के पीछे वो हैं, लेकिन आपके नाम का आदमी उन्होंने आगे कर दिया है, जिससे कि उनका मंसूबा न समझ में आए। आज आपके दिल्ली के अंदर किसान बैठे हैं, ये किसान कौन है, कहां से आए हैं, कहां से रसद मिल रही है, कौन लोग इनके साथ में है, जो नमाज पढ़ के निकलता है और स्कूटर पे नकली पगड़ी लगा के फिर वहां जाकर के सौनिहाल करता है। तो वो फोर्सेस एजेंडे के तहत है। उनका बच्चा बच्चा जानता है कि उनका नुकसान किससे हो रहा है, लेकिन हमारे बुढ़े बुढ़े को नहीं पता, क्योंकि वो इतने तर्कों में, रीजन में, ये ऐसा है वो वैसा है, उसमें फंसे हुए हैं। क्योंकि हम स्वार्थी और लालची लोग हैं। हमें मानना चाहिए कि हम लालची लोग हैं, हम डरपोक लोग हैं और हमें डर बैठाया गया है। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि जिस हिंदू के बारे में हम ये कहते हैं ये डरपोक है, जो हत्या नहीं करता, अपने सगे भाई की 1 इंच ज्यादा जमीन देने और लेने पे इस देश में 50-50 साल से मुकदमे चल रहे हैं। 50-50 लोगों की हत्याएं हो गई। जब वहां हत्या होती है तो वह हिंदू बहादुर हो जाता है, लेकिन जब सामने जिहादी और कुरान को मानने वाली शक्तियां खड़ी होती है तो वह चुप हो जाता है। इसलिए हम हैं तो, लेकिन हमें दूसरों से डराया गया है। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप इस बात को ध्यान रखें कि ये जो पिछले दिनों से काफी मामला चल रहा है, जिसमें सुरेश के चौहान साहब कोर्ट भी गए और तमाम सारी बातें हुई हैं, लेकिन उसकी जड़ को समझिए। वो लोग कभी ये मांग नहीं करते कि हमारी मस्जिद बना दीजिए। कौन कह रहा है मस्जिद बना? उनको इंटरेस्ट नहीं है। अरे जिस दिन उनका राज होगा मस्जिदें होंगी। आप मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे, 150 साल से आपने मंदिर की लड़ाई लड़ ली, आपने जीत ली। आजकल उसके सिलसिले में बहुत सारा प्रकल्प भी चल रहा है, वो मंदिर बनेगा, करोड़ों का बनेगा, अरबों का बनेगा। लेकिन सुरेश भाई, विवेक भाई, प्रकाश भाई, मेरी इतनी सी छोटी सी इल्तिजा है कि आप मुझे बताइए कि अगर ये भव्य राम का मंदिर बन भी रहा है, मैं मानता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनेगा, सबसे बड़ा भव्य मंदिर बनेगा, लेकिन क्या मैं इस बात के लिए आश्वस्त हो सकता हूं कि मेरे आने के बाद इस देश के अंदर जो इस चलते फिरते हिंदू सनातनी मंदिर हैं, अगर उनका पुरुषार्थ यही है, अगर उनके 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 अंदर कोई जागृति नहीं है, अगर उनके अंदर कोई ताकत नहीं है, अगर वो मजबूत नहीं है, वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, वो सामाजिक रूप से मजबूत नहीं है, तो मैं मानता हूं कि आप कितना भी भव्य मंदिर बना लीजिए। औरंगजेब आया, बाबर आया और आपके वहां सोमनाथ को तोड़ने के लिए भी आए, लेकिन मैं पूछता हूं क्या कोई आया था तो 5 करोड़ लोग लेके आया था? कोई अपनी सेना लेके आया था जिसने मंदिर तोड़े? सवाल यह है कि भारत के अंदर रहने वाला समाज उस वक्त भी भाग गया, उसने प्रतिकार नहीं किया। कुछ लोगों ने किया तो पूरे समाज ने नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मंदिर कितना भी भव्य बनाए, अरबों खरबों रुपया उस पे लगा के बनाए, लेकिन ये मंदिर रहेगा अगले 20 साल तक कि नहीं, इसकी चिंता होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि मंदिर की नींव और मंदिर के भव्य बनने से ज्यादा जरूरी है कि इस देश में जो 90 करोड़ से 100 करोड़ जो मंदिर चलता फिरता हिंदू है, उसको मजबूत कीजिए, उसकी मानसिक ताकत को बढ़ाइए, उसकी आर्थिक ताकत को बढ़ाइए, उसमें बैठा हुआ डर बाहर निकालिए। अगर इस देश में हजारों करोड़ों अर्नब और सुरेश के चौहान नहीं होंगे, जीडी बख्शी नहीं होंगे, ये लोग अपनी पारी खेल के चले जाएंगे। लेकिन क्या हमने नेक्स्ट जनरेशन के लिए ऐसे लोग बनाए हैं जो स्पेट को स्पेट कहें, जो गंदे को गंदा कह सकें, जो कुरान पे डिस्कस कर सकें? क्या हमने ऐसे बहादुर पैदा करने की कोशिश की है? क्या समाज पूरा इन 10, 20, 15 लोगों के बल पे ही चलेगा? क्या कुछ हिंदू संगठनों के बल पे चलेगा? तो हिंदू संगठनों अगर इतने थे तो इस देश के अंदर पिछले 70 सालों में पुरुषार्थी हिंदू पैदा क्यों नहीं हुआ? क्यों नरेंद्र मोदी पहले पैदा क्यों नहीं हुआ? क्यों अमित शाह पहले पैदा नहीं हुआ? इसलिए कि हमने होने नहीं दिया। और आज आपको वो ऐतिहासिक घड़ी मिली है कि आप ये माने या न माने, मैं फिर कह रहा हूं, जो सुरेश चौहान साहब बार बार कह रहे हैं कि क्या अगले 10 साल तक आपने सत्ता बदली है, सत्ता में लोग बिठाए हैं, लेकिन आप ये भी याद रखें कि कई 100 सालों के बाद सत्ता पे कोई हिंदू राजा बैठा है जिसे अपने हिंदू होने पे शर्म नहीं है। लिहाजा समाज आज भी शर्माया है। आपने सिर्फ एक ही काम किया है कि अभी बटन दबाया है। लेकिन मैं कहता आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या भारत के सनातनी हिंदुओं को इस देश के संविधान में लिखी हुई बात को मनवाने के लिए हजारों शाहीन बाग नहीं बनाने चाहिए? क्यों नहीं बनाने चाहिए? जो लोग संसद में पास हुए बिल के खिलाफ गलत तरीके से इस देश में शाहीन बाग पर बैठ जाते हैं, इस देश की न्यायपालिका उनकी ठोड़ियों में हाथ डालती है, पुलिस उनके ऊपर पानी नहीं डालती। यही पुलिस इस देश में हरियाणा के अंदर
एक साधु के आश्रम में घुसने के लिए पॉइंट ब्लैंक गोली चला देती है और 34 लोग मर जाते हैं। उनके अनुयायी गलत हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, ये बयान नहीं है, लेकिन उसके अनुयायियों पे आप पॉइंट ब्लैंक गोली चला करके उनको मार देते हैं, तब मानवता की बात नहीं होती। लेकिन शाहीन बाग भारत की संसद द्वारा पास किए कानून के खिलाफ बैठते हैं, भारत की सरकार को 90 दिन तक घुटने टिका के रखते हैं और कुछ नहीं होता है, और उसके बाद में दिल्ली में एक तरफा दंगा होता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, क्यों भारत का सनातनी हिंदू ये चाहता है कि सरकार में जो बैठे अब ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये साहब वो ये बिल पास करें? क्या इन बिल जिससे राष्ट्र बच सकता है, जिससे ये देश बच सकता है, जिससे सनातन बच सकता है, क्या हम उसके लिए भी पार्ट टाइम राष्ट्रवाद करेंगे कि हम टेलीविजन पे आए, बैठे, 1 घंटा चले गए, भाषण दिया, चले गए? क्या 24 घंटे में से हम कितने घंटे उन मुद्दों के लिए जिससे राष्ट्र सुरक्षित हो सके, जिससे ये देश सुरक्षित? सरकारें सुरक्षित करना एक काम है, लेकिन राष्ट्र को सुरक्षित करना समाज की जिम्मेदारी है। लिहाजा वोट देने से सरकार बनेगी, वो सरकार अपने कायदे कानून से चलेगी, सरकारें संविधान से चलती हैं और समाज चलाता है राष्ट्र को। राष्ट्र कमजोर है, राष्ट्रवादी कमजोर है, उनके अंदर कायरता, लालच आ गया है और उन्होंने सोच लिया है कि अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह की ठेकेदारी है, जिम्मेदारी है, अब सारा काम वही करेंगे, हम क्यों करेंगे? हम तो सिर्फ रोज बैठ करके ज्ञान देंगे कि आज ये करो, आज वो करो। आज भी देखिए खालिस्तानी ताकतें और कुरानिक जिहादी ताकतें हिंदुस्तान की सरकार को रोज चैलेंज कर रही हैं, पूरे देश में गंदगी फैला रखी है। 26 जनवरी जो हमारे लिए एक मंदिर की तरह है, उसको तोड़ने की और उसको डराने और उसको धमकाने और उसको विवादित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या 90 करोड़ हिंदुओं की, सनातनों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम भी ये कॉल दें कि दिल्ली में 1 करोड़ हिंदू बैठेगा और सारे रास्ते जाम कर देगा और सरकार से कहेगा कि लोग नाजायज मांगों के लिए बैठते हैं, हम तो जायज मांग के लिए बैठे हैं। लेकिन जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी, कश्मीर से निकाले गए कश्मीरी हिंदू पंडित दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपने बल पे आज भी जगह जगह हैं। लेकिन कश्मीरी हिंदू पंडितों के बारे में सरकार से आप कहेंगे कि हमारे लिए जाने का इंतजाम करे, सरकार कोई इंतजाम नहीं करती। सरकार उसी से डरती है जो सरकार को डरा देता है। मैं आपसे पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूं कि आप कश्मीरी पंडित, जंतर मंतर पे 89 से, मैंने 88 में अपना कैरियर शुरू किया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। 89 से लेके आज तक मैं जागता हूं, आप हर बार वो दिवस मनाते हैं, उस दिवस मन रहा है। मैं पिछले 30 साल में बहुत सारे ऐसे चेहरे देखे जो अब उसमें नहीं है, कि वो बीच बीच में बेचारे स्वर्गवासी हो गए। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? क्या भारत के तमाम हिंदुओं की जिम्मेदारी नहीं है? क्या भारत के बंगाल में रहने वाले, आसाम में रहने वाले, मध्य प्रदेश में रहने वाले का ये जिम्मेदारी नहीं है कि कश्मीर के हिंदू की तकलीफ हमारी तकलीफ है? आप उनको गाली देते हैं, वो कहते हैं कि अगर मंगल ग्रह पे भी कोई मुसलमान रहा है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, और वो भारत की विदेश नीति बदलवा देते हैं। पैलेस्टाइन के अंदर गोली चलती है इजराइल की, तो वो भारत की पॉलिसी बदलवा देते हैं। वो भारत की सरकारों को मजबूर कर देते हैं कि 25-25 साल तक सरकारें इजराइल के साथ संबंध रखती हैं और सार्वजनिक नहीं करती। ये शक्ति उनके अंदर इस देश में 22 से 23-24% होने के बावजूद भी है, लेकिन आप में 90 करोड़ होने की बात नहीं है, क्योंकि आप दूसरों पे निर्भर रहते हैं, अपने पे नहीं करते। जो कौमें, जो समाज मरने से डरते हैं, जो समाज कुछ खोने से डरते हैं, वो जिंदा नहीं रहते। अगर किसी कौम को जिंदा रहना है तो उसे मरने का हुनर और फन आना चाहिए। हम हर जगह चाहते हैं कि हमारी जगह भगत सिंह कोई आ जाए, हमारी जगह सुभाष कोई आ जाए। हम नहीं बनना चाहते। हम सत्ता पहुंच करके अपने निजी स्वार्थों को, अपनी जाति को, अपने धर्म को, अपने लोगों को सिर्फ फायदा पहुंचाने के अलावा नहीं करते। क्या कभी हमने समग्रता में राष्ट्र के सामने क्या प्रश्न है, क्या कभी हमने उसको बनाया? मैंने इसलिए कहा कि भारत में एक प्रधानमंत्री आया, 91 से 95 तक एक प्रधानमंत्री था। वो पुर्तगाल की यात्रा पे गए, पुर्तगाल के लोगों ने वहां एक मंदिर बनाया और उनसे कहा कि आप आए हैं, इसका इनॉग्रेशन कर दीजिए, पूजा आप कर दीजिए। उस प्रधानमंत्री ने कहा मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं जो सेकुलर राष्ट्र है, मैं इसका इनॉग्रेशन नहीं कर सकता। आप 1995 में ये थे, लेकिन सनातनियों, जिस दिन आपने अपने पुरुषार्थ को पहचाना, भीड़ को नहीं, भीड़ से दुनिया नहीं जीती जाती है, बाजुओं से जीती जाती है, ताकत से जीती जाती है, पुरुषार्थ से जीती जाती है। जिसके यहां से डर निकल जाता है उसको किसी हथियार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उसमें ये दम है और यहाँ का डर निकला है तो वो हाथों से भी बराबर कर देगा। इसलिए 1995 के प्रधानमंत्री को देखा हमने, 2014 के प्रधानमंत्री को देखा हमने, 2018 के प्रधानमंत्री को देखा, 2019 के भी प्रधानमंत्री को देखा। अगर राष्ट्र में एक कैसा भी आया है, उससे हजार छोटी छोटी बातों पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन अपने इस छोटे छोटे डिफरेंस में हम बड़ा एजेंडा नहीं खो सकते।
95 का प्रधानमंत्री भारत का पुर्तगाल में जाकर के एक मंदिर का इनॉग्रेशन करने से घबरा रहा था। आज संविधान भी वही है, प्रधानमंत्री का पद भी वही है, लेकिन प्रधानमंत्री के पीछे जो ताकत है, उसने अयोध्या के अंदर 8 घंटे तक पूरी दुनिया को बताया कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, ये मेरी संवैधानिक जिम्मेदारी है, लेकिन ये मेरी आस्था का प्रश्न है और मैं अपनी आस्था को संविधान से अलग करके यहाँ बैठा हूं। उसने पूजा की, तिलक लगाया, गेरुए बस लेके घूमा। भारत के हिंदू समाज को कौन सी कुंठा है, कौन सी कॉम्प्लेक्स है जो आप अपनी पहचान पे शर्माते हैं? वो छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने, नीली टोपी, पीली टोपी लगाए घूमते रहते हैं, जैसे भी हैं, लेकिन अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हैं। जुमे की नमाज पर डिमॉन्स्ट्रेशन करना उनका एक मजहब है। वो ये जानते हैं कि हम जब ताकत में निकलेंगे और सड़कों पे खड़े हो जाएंगे तो सड़क पर लोग रुक जाएंगे और लोगों को रोकने की ताकत उनके अंदर है। लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि हम स्वांग ज्यादा करते हैं, ड्रामा ज्यादा करते हैं, हमारी नियत कम होती है, हमारा एजेंडा ज्यादा होता है। इसलिए मंदिर बनाइए, मंदिरों की रखवाली कीजिए। क्या अकबर ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, अब्दाली ने क्या किया, छोड़ दीजिए। मैंने तो अपनी आंखों से आजाद भारत के अंदर कश्मीर में 1200 हिंदू मंदिरों को किसने तोड़ा, किसने जलाया, ये तो मेरी आंखों के सामने हुए हैं। आप कहते रहिए कि अकबर बाबर ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, छोड़ दीजिए। लेकिन कश्मीर के अंदर जब उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का ताला खुला तब भी 500 मंदिर टूटे थे। और आज कितने मंदिर हैं? बहुत सारे मंदिरों में हमारी एक टीम काम कर रही है, बताते हैं कैसे उन्होंने मंदिरों के अंदर गंदगी करना शुरू की है, कैसे उन्होंने पेशाब कर। ये मानसिकता है कि हम तुम्हें जूते के नीचे रखेंगे, इसलिए आप उनकी मानसिकता के साथ आपका कोई वो नहीं हो सकता। इसलिए मैं मानता हूं कि अल-तौबा नाम का सूरा नंबर 9 है, उसमें आयत नंबर 5 है, 123 है, 23 है, 37 है, 111 है, 58 है, 29 है, 14 है और 28 है। इन्हें पढ़ लीजिए, ये दिमाग से गलतफहमी निकल जाएगी कि हिंदू मुस्लिम भाई 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 कभी नहीं थे। ये तो प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान के अंदर जो झगड़ा चल रहा था उसमें उन्होंने कहा हम सब आपस में भाई भाई हैं। लेकिन उन मूर्खों ने आपको बता दिया, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद के सगे न हुए, जो उनके दामाद के कातिल हैं, जो उनकी बेटी फातिमा के कातिल हैं, जो उनके नवासों के कातिल हैं, जो उनके सगे न हुए, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान को मारा, वो आपसे कह रहे हैं जिस सूरा नंबर 9 में आयत नंबर 5 में ये लिखा हुआ है कि मुशरिकों, जो पूजी करने वाले लोग हैं, जो मूर्ति के पूजक हैं, उनकी कत्ल वाजिब है। आप उनसे भाई भाई की बात करते हैं। ये सब बकवास इस देश में सिर्फ हिंदुओं को है। उनका एजेंडा कश्मीर में भी वही है, उनका एजेंडा दिल्ली में भी वही है। दिल्ली में जिस दिन गिनती जहां जहां आपकी कम है वहां पर क्या हो रहा है आपको पता है। एक तरफा दंगा किया गया और उस दंगे में तय कर दिया गया, मुसलमान घरों में जाके औरतों को 4 दिन पहले बता दिया गया था कि अपनी सीढ़ियों के ऊपर तेल डाल के रखना ताकि पुलिस न चढ़ पाए, अपने घरों में गर्म पानी करके रखना ताकि दंगाई आए तो डाल देना। तो वो जाहिल औरतें, वो कमजोर औरतें, वो घरेलू औरतें, उनका इस्तेमाल किस किस्म के लिए किया गया और तैयारी थी पूरी। HDFC बैंक के अंदर एक मैनेजर था मुसलमान, उससे कहा उस दिन मत आना। जो मुसलमान इलाके के स्कूल थे उन्हें 2 दिन पहले छुट्टी दे दी गई। अरे भाई, आपकी आंखों के सामने सब कुछ किया गया, लेकिन आपको समझ नहीं आता। आप इतने मूर्ख हैं कि अपने पड़ोस में दाएं बाएं देखते नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। और दंगा हो गया, वो भी जानते हैं कि भारत का क्रिमिनल सिस्टम कितना खूबसूरत है। अगर क्रिमिनल सिस्टम इतना ही अच्छा होता तो 1990 के अंदर कश्मीरी पंडितों को इस देश की सरकार ने, इस देश की न्याय व्यवस्था ने उनको फैसला दिया होता। लेकिन भारत की सुप्रीम कोर्ट इसके जानती है, इस बात का उसको पता है कि ये हिंदू कायर है, डरपोक है। क्यों इसके साथ हम खड़े हो? दुनिया में नियम है, बहादुर के साथ हर कोई खड़ा होता है। बहादुर बनने की कोशिश कीजिए। और इसलिए आपने नहीं सुना, लिहाजा वो लोग जब शाहीन बाग बना देते हैं, CA के बाहर खड़े हो जाते हैं, तो कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर मस्जिद बना देते हैं, तो आप एकत्र नहीं है। आप कुछ ग्रुप बना लें, कुछ संगठन बना लें, कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन कर लें सरकार के सामने के लिए। आप सरकार पे जिस दिन निर्भर रहना छोड़ देंगे, सरकार आपके ऊपर निर्भर हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये देश आपका है, ये राष्ट्र आपका है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि राष्ट्र की ठेकेदारी आप करें, GST आप दें, इनकम टैक्स आप दें, और वो जो जिहादी है उसका बच्चा पढ़ के IAS में आए और फिर फखरुद्दीन नाम का एक जज बन जाए, जो चरखी दादरी में खड़े होकर के मेरे मुसलमान भाई, तू हिंदुओं से पिट के कैसे आया? अगर तू उसको गोली मार देता तो मैं तुझे बचाता, मैं तेरा भाई जज यहाँ बैठा हुआ हूँ। आप उस मानसिकता से लड़ रहे हैं। सारा पॉलिटिकली करेक्ट होना भारत की ब्यूरोक्रेसी को हो गया है। ब्यूरोक्रेसी को ही सबसे ज्यादा साफ लगता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, वैसा करना। ये कौन लोग हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर? ये वही लोग हैं जो सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। लेकिन ये सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं है, ये व्यवस्था सुख भोगने के लिए नहीं है। ये नहीं रहेगी तो आप भी नहीं रहेंगे। इसलिए आम आदमी को उठना चाहिए, वो कश्मीर हो,
वो कैराना हो, वो संबल हो, वो मुरादाबाद हो, वो मेरठ हो, वो मलियाना हो, कोई भी जगह हो, उसके लिए समाज को लड़ना होगा। और समाज नहीं लड़ेगा तो सरकारें आपके लिए नहीं आएंगी। वो आदर्श व्यवस्था होती है। ये देश आदर्श व्यवस्था में नहीं चल रहा, आदर्श नहीं है देश ये। इसमें दो तरफा कानून बने हुए हैं। इस देश में 1976 के अंदर कहा गया ये सेकुलर स्टेट है, लेकिन इसी सेकुलर स्टेट के अंदर क्या क्या जघन्य अपराध हुए, किसी ने इस तरफ सोचा? नहीं सोचा। इसलिए मैंने कहा कि किस तरीके से आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मुसलमानों के दबाव में ला करके 1991 में पास कर दिया। आपने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी 1993 में बना दिया, बिना किसी सोचे, बिना किसी समझे। और उसमें 50,000 पारसी भी माइनॉरिटी में है और उसमें 25 करोड़ मुसलमान भी माइनॉरिटी के अंदर है। आपने कैसे मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड अलग से बना दिया। आपने वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 1995 बनाया और 2013 में उसको इतना मजबूत कर दिया कि कल सुरेश के चौहान जी के ऑफिस के बाहर 4 लोग आए जो वक्फ के लोग हैं, वो ये कहें कि यहाँ मंदिर है और इनका मकान खाली कर दे। तो वक्फ की ताकत है सेक्शन 40 में कि वो लोग आदेश देंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और कहेंगे इस मकान को खाली कराओ, इस ऑफिस को खाली कराओ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द वक्फ बोर्ड। हम किस दुनिया में रह रहे हैं यार? ये जमीन आपकी नहीं है, आपके हाथ से जा चुकी है। उसको 1913 के अंदर और ताकत दे दी गई। इस देश में सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, नंबर 2 पे डिफेंस के पास है, नंबर 3 पे वक्फ बोर्ड के पास है। जब झगड़ा होगा, जब लड़ाई होगी, तो जो मालिक होगा जमीन का, उसका हक ज्यादा होता है। आप किराएदार बन चुके हैं। वो जो 50 साल से एक बेवकूफ था जो अभी हाल में मरा है, इंदौर का बहुत खूबसूरत शायर था, आप उसकी शायरी पे हंसते थे और ताली बजाते थे। ये दुनिया की ऐसी पहली कौम है कि कोई आपको गाली दे और आप हंसते हैं। वो यही कहता था कि जो आज साहिब मसनद है ये किराएदार है, मकान मालिक नहीं है। आपकी समझ में नहीं आया वो क्यों कह रहा है। आप सच में भारत का सनातनी हिंदू किराएदार हो चुका है। आपको अभी अंदाजा नहीं है, क्योंकि आपको ये बात मेरी ऐसी लगती होगी कि कैसे हो सकता है 100 करोड़ हिंदू किराएदार हैं, कैसे हो सकता है हमारी सरकार है, हमारी पुलिस है, हमारी व्यवस्था है, पुलिस है, सरकार है, सेना है, सब कुछ भी नहीं है आपका। कोई नहीं आपको बचाने आएगा, आपको लड़ना पड़ेगा। इस देश की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी और जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, इसलिए आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि आप 100 गज और 200 गज के लिए अपने भाइयों का मर्डर करते हैं और वो पूरा देश लेने के लिए आपका मर्डर कर देते हैं। आप देश की जमीन 1947 में दे चुके, बंगाल में दे चुके, इस कश्मीर में दे चुके। वो किस तरीके से काम करते हैं ये सबको पता है। आज वो जिहादकारी है। अब कहे कि लव जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, लेकिन हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है। लेकिन हम कैसे मूर्खों के कामों में लगे, हम घर वापसी में लगे हुए हैं। 2 घर वापस आ भी गए, लेकिन 500 निकल गए हाथ से। ये घर वापसी वो प्रोग्राम है कि जब आपके पास फालतू लेबर हो और जब लोग आपसे सवाल पूछने लगे तो आप किसी काम में ऐसे में लगा दे कि 200 साल तक वो बिजी रहेगा। ये कम से कम 200 साल तक तो हमसे नहीं पूछेगा। ऐसे मूर्खपने के कामों को मैं कभी भी एंडोर्स नहीं करता हूं। अगर किसी को शौक है तो वो करे, लेकिन भारत के 2020 के भारत के हिंदू को ऐसे कामों में न लगाएं जिससे कि उसको ये अंदाजा ही ना हो कि वो जिसको वापस ला रहा था वो तो आया नहीं, लेकिन घर से भी कई हजार चले गए। अब मैं सड़क पे खड़ा हूं, अब घेर के लोग मुझे मारेंगे और मैं मर जाऊंगा, कोई मेरे जनाजे में भी नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को डर है। लिहाजा कश्मीर सिर्फ एक नहीं है, कश्मीर एक सिंबल है। कश्मीरी हिंदू पंडितों का पलायन इस देश में एक मिसाल है। इस मिसाल का जिक्र करें कि गृह मंत्री होते हुए उसने अपने जिहादी एजेंडे को पहले लागू किया और भारत के संविधान को ताक पर रख दिया। लेकिन हम बोलने से शर्म आते हैं। हमें अपने अंदर थोड़ा सा झांकना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि हम पूरी दुनिया को ज्ञान बांटते हैं, पूरी दुनिया को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हमें अपने ही घर में रास्ता नजर नहीं आता। सरकार बदली है, व्यवस्था नहीं बदली है, जिसकी तरफ इशारा किया सुरेश जी ने। व्यवस्था अभी भी उसी एजेंडे के साथ बैठी है कि नहीं सुभाष चंद्र बोस की अगर यहाँ मूर्ति लगेगी तो देखिए सेना में ऐसा कहा जाता है, वैसा कहा जाता है। ये कायर व्यवस्था है। कायरों ने, दलालों ने इन व्यवस्था को बनाया है कि जो इस व्यवस्था पे बैठेगा वो कायर हो जाएगा। लेकिन मुझे खुशी है कि आज पिछले 3 साल की इस भाग दौड़ में इस व्यवस्था में हजारों ऐसे लोग मुझे उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश और बिहार और महाराष्ट्र में मिले हैं। उन्होंने कहा है कि जिस दिन भी इस देश में आप ऐलान करेंगे 10-15 लोग, हम सब व्यवस्था छोड़ के आ जाएंगे। हम मजबूर हैं, हम इसलिए नहीं है कि हमारा कोई स्वार्थ है, लेकिन आप कुछ ऐलान कीजिए, हम आएंगे। मैं मानता हूं कि कम से कम किसी समाज के बदलने का ये पहला सिम्टम है कि आप
गंदगी को गंदगी समझें। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में एक अभियान चलाया, स्वच्छ अभियान। हमने सड़कें साफ की, हमने गलियां साफ की। अरे वो जो जिस बैकग्राउंड से आया है नरेंद्र मोदी, वो बात फिलोसफिकल अंदाज में करता है, और भारत का वो समाज जिसे सनातनी समाज कहते हैं, जिसका ज्ञान दुनिया में था, वो उसके इशारे को नहीं समझा। उसने ये कहा कि सड़क पे पड़े कूड़े को तो साफ करो, लेकिन इस सड़क पे चलने वाली कौन सी विचारधारा है जिसके दिमाग में कूड़ा है, उसको भी साफ करो। नहीं समझ में आया। प्रधानमंत्री होकर के रोज रोज आपको टेलीफोन करके नहीं बताएगा। राष्ट्र का, इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जिसे कि प्रधानमंत्री है, दुनिया के इर्द गिर्द घूम रही है, दुनिया उससे सवाल पूछ रही है, लेकिन भारत का सनातनी हिंदू नहीं समझ पा रहा कि ये गंदगी साफ करने का मतलब क्या है। जब सड़क साफ करोगे तब उस सड़क के ऊपर ये गंदा विचारधारा जो टेंट से 1400 साल पहले निकली थी, जो ऊंट पे खड़े होकर के खजूर तोड़ने वाली सभ्यता थी, इसको कब लाइन पे लोगे? इसके अंदर जो जहर और गंदगी भरी है, इसकी सफाई कब करोगे? और ये नहीं करोगे तो ध्यान रखिएगा, आप भी वैसे ही गायब हो जाएंगे जैसे ईरान से हुए थे, अफगानिस्तान से हुए थे। आप भी वैसे ही गायब होंगे, और जिंदगी भर तक, लास्ट तक आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ सर्वाइवल है। आज इसके पैर पकड़ लो, कल उसके पैर पकड़ लो, कल इसकी चमचागिरी कर लो, कल उसकी चमचागिरी कर लो, आज इससे ये मिल जाएगा, कल उससे ये मिल जाएगा। सनातनियों, इस देश के 100 करोड़ हिंदू, एक बार सनातन का हाथ पकड़ लो, दुनिया में किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं समझता हूं कि मैंने अपनी बात कह दी है। जो हमारे तीसरे साथी हैं, मैं उनको सुनूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, आपके विचारों को रखने के लिए। और आपने काफी साफ गोई के साथ, बिना लाग लपेट के अपनी बातें रखी। और मेरा ऐसा मानना है कि वो जो च्यवनप्राश आपने खिलाया है पूरी हिंदू कम्युनिटी को, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर हो, वो बहुत जरूरी भी था। और जो नारा चलता है कि मोदी है तो मुमकिन है, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर भी आशा वही थी कि सरकार कुछ करे, मोदी जी कुछ करें। तो आपने सही दिशा हमें दिखाई कि जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे, तब तक कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। तो आपके विचार, मुझे आशा है कि सभी को बहुत एनलाइटन किया होगा, जितने भी सुनने वाले हैं फेसबुक के माध्यम से और इस जूम कॉल के माध्यम से। बहुत बहुत आपका धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। नाउ आई विल मूव ऑन टू इंट्रोड्यूस आवर नेक्स्ट पैनलिस्ट, श्री आशीष धर. So he's a Kashmiri Hindu himself, but unfortunately living in exile in New Delhi. He's a mechanical engineer by training and a social entrepreneur by occupation. He's the co-founder of Upward, an alternative media outlet that produces audiovisual content and commentary on socio-cultural issues like Hindu temple autonomy, judicial reforms, civilizational conflict like Kashmir, and so on. He's also the operations head of Indic Collective Trust, which is a legal research and activism forum that represents Indic civilizational positions in legal cases of national and international significance. So while so far we have been discussing and hearing from all the panelists, so now Ashish, of course, while being a very vocal activist about the Kashmir issues, he is also a Kashmiri Hindu, as he rightly said. And we all must note that he likes to introduce himself as a Kashmiri Hindu, not as a Kashmiri Pandit. So that has a lot of significance in itself, because that actually tells you that the amount of divisions that we have in our society, and that's what I think Pushpendra ji was referring to. So over to you, Ashish. And as I mentioned, no language barriers, English, Hindi, जिसमें आप बात करना चाहें, whatever you're comfortable with, we'll be more than happy अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो. Over to you. नमस्ते एवरीवन। पहले तो मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मुझे इस सेशन में बोलने का अवसर दिया गया। इससे पहले मैंने सुरेश जी का सेशन तो मिस कर दिया क्योंकि मैं कहीं ऑफिस में फंसा हुआ था, पर सुरेश जी का वक्तव्य मैं कई बार सुन चुका हूँ और मैं उनकी हर एक बात से लगभग सहमत हूँ। और तो इसलिए मुझे आज सुनने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैं सुरेश जी के जो विचार हैं उनसे ऑलरेडी सहमत हूँ और मैंने कई बार कई फोरम्स में कई जगह पे उनके ये विचार सुने हैं और सुदर्शन टीवी के माध्यम से भी मैं उनसे परिचित हूँ। उसके बाद जब मैंने अभी ज्वाइन किया तो पुष्पेंद्र जी बोल रहे थे, और पुष्पेंद्र जी एक और मतलब ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ओरेटर्स and activists that we have today, and I've been lucky to to hear his
thoughts on various issues, primarily through YouTube. कभी उनसे मिलने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उनके भी वक्तव्य से मैं काफी बार मैं सुन चुका हूँ और मैं उनके विचारों से भी मोस्टली मतलब कंसेंसस रखता ही हूँ। तो लेकिन आज कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज के इस सेशन में जो उन्होंने कही, जिससे मैं फंडामेंटली डिसएग्री करता हूँ, और वो मैं अभी अपने इस सेशन में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे पास कभी 20-25 मिनट हैं और मैं संक्षिप्त में ही बोलूंगा। तो जो आज की एज है जिसमें हम रह रहे हैं, वो एक इंफॉर्मेशन एज है, जैसा हम सब जानते हैं। इट्स एज ऑफ इंफॉर्मेशन। आईटी बूम हुआ और इंटरनेट के कारण एक तरह से जो ये हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, इसको एक नया जन्म मिला, एक नई तरह से उभरा। और मुझे नहीं लगता, मतलब हमें भगवान का बहुत ये आभारी रहना चाहिए कि इंटरनेट आया, क्योंकि अगर नहीं आता तो मुझे नहीं पता कि किस तरह से हम ऐसे सेशन कर सकते, एक दूसरे से बात कर सकते। और जिस तरह की आज चर्चा होती है समाज में, एक वर्ग है समाज का जो जागरूक है, और उसमें जिस तरह की चर्चा होती है, शायद ये पॉसिबल नहीं होता अगर ये इंफॉर्मेशन एज नहीं होती। और मुझे नहीं पता कि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा क्या होता। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है, और वो ये है कि क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एज है, तो एक पैराडॉक्स आ चुका है हमारी जीवन में इंफॉर्मेशन के ओवरलोड के कारण। और वो ये है कि हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि हम उसको सॉर्ट नहीं कर सकते। जैसा कि हम कई बार सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि इतना सारा फीड में कंटेंट होता है कि क्या देखें क्या नहीं देखें, किस चीज पे गौर करें, किस चीज को नजरअंदाज करें, यही क्लियर नहीं होता। तो ये इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स जो है, ये हिंदुओं के लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हिंदू अभी उभर ही रहे हैं, समाज जागरूक हो ही रहा है। और इस समय पर अगर इतना सारा कंफ्यूजन हो गया, तो एक तरह का एक पैरालिसिस हो जाता है सोसाइटी में, क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में ही दिमाग लग जाता है, और जो एक्शन है वो कहीं उसका कोई दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। तो ये इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स में ही कुछ चीजें हैं जो प्रचलित हुई हैं, और उसमें एक ये जो फैक्टर है वो है ये हिंदू यूनिटी का, जो हमेशा बोला जाता है कि हिंदू यूनाइटेड नहीं है और बटे हुए हैं। तो मैं इस बात को कंप्लीटली रिजेक्ट करता हूं, और साथ ही साथ मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं बाकी समाजों पे भी, जैसे मुस्लिम समाज है या क्रिश्चियन समाज है, तो उधर भी बहुत सारे सेक्ट हैं, और जिस तरह की उनकी आपस में राइवलरी है, वो हिंदू समाज ने देखी ही नहीं है कभी अपनी हिस्ट्री में। और जिस तरह से वो एक दूसरे को मार काटने के पर तुले रहते हैं, वैसा हिंदू समाज में कभी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें वो उनसे ये सीखना है कि किस तरह एक दूसरे को मार काट दो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि समाज का जो स्ट्रक्चर ही होता है वो यूनाइटेड, कभी यूनानिमस नहीं होता। और इसमें एक जो आजकल के प्रचलित विद्वान है निकोलस नसीम तालिब, उनका जो माइनॉरिटी रूल जिसे कहें, माइनॉरिटी रूल के अनुसार कि यदि आप 15% लोगों को एक इंट्रांसिजेंट माइनॉरिटी बना दें, इफ यू क्रिएट एन इंट्रांसिजेंट माइनॉरिटी दैट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स प्रिंसिपल्स, तो आपका काम हो चुका। तो अगर आप 15% लोग भी एक चीज पे सहमत हैं, तो फिर आप अपनी विल को किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो एक्शन ओरिएंटेड हो जाता है। अगर वो एक्शन आप कर पाते हैं तो आपका काम हो गया। वही अगर आप भारत के समाज में देखें तो मुसलमान ऑफिशियल फिगर्स के अनुसार 15% 20% हैं। अब वो असली में कितने हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन 15% से 20% के बीच है। और अपनी मनमानी वो पूरी तरह से भारतीय राज्य के द्वारा वो अपने मनचाही जो पॉलिसीज हैं वो इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। और ये जो 15% इंट्रांसिजेंस है, यही वो कर पाता है। उसके लिए पूरे भारतीय समाज को नहीं करना पड़ता। जैसे हम आज बात कर रहे हैं, हम हमेशा ये कहेंगे कि अरे ये क्या हो रहा है, इस तरह से आईएएस के इसमें भी घुस गए, वहां पे भी आर्मी में भी जा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो कितना डेंजरस ट्रेंड है। लेकिन 15% है और 15% इंट्रांसिजेंट है। अगर आप हिंदू समाज का इस तरह से विश्लेषण करें तो उसमें आपको 15% से ज्यादा सहमति मिलेगी। वो आपको क्लियरली बीजेपी के जो राइज है उसी से क्लियर हो जाता है। आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, इस वजह से क्योंकि लगभग 1/3 वोट भारत का भारतीय जनता पार्टी को गया, और वो 1/3 वोट लगभग पूरी तरह से हिंदुओं का था।
तो 15% से कहीं ज्यादा सहमति है हिंदुओं में पॉलिटिकल इश्यूज को लेके। मगर जो दिक्कत है वो ये है कि जो चेतना है, जो हिंदू चेतना है, वो पॉलिटिक्स पर फोकस्ड है। और यहाँ मैं पुष्पेंद्र जी के साथ पूरी तरह अग्री करता हूं कि यहाँ पे जो भेद है राष्ट्र और राज्य का, वो हिंदू समाज नहीं कर पाता। और वो एक बार उन्होंने बटन दबा दिया 5 साल में, और उसके बाद वो चैन की नींद सोने चले गए, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमारा काम हो गया। तो यहां तक मैं सहमत हूं। परंतु आज के युग में जो स्टेट है, जो हिंदू मतलब जो इंडियन स्टेट है या कोई भी देश है, उसका जो स्टेट है वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटिटी है, जिसके जिसके खिलाफ एक समाज कुछ नहीं कर सकता। समाज को स्टेट के अनुसार चलना पड़ता है, ना कि स्टेट समाज के अनुसार चलता है, जब स्टेट और समाज के बीच तालमेल नहीं हो, जैसे कि भारत में है। जब इस्लामिक कंट्रीज की हम बात करते हैं तो वहां वो तालमेल है, क्योंकि जो स्टेट है वो इस्लामिक स्टेट है, समाज इस्लामिक समाज है, इसलिए उनके बीच तालमेल है। तो जो समाज का हित है वो स्टेट देखता है। लेकिन जब हिंदू समाज की बात करें तो जो इंडियन स्टेट है वो सेक्युलर स्टेट है, और हिंदू समाज अगर अपने धर्म के अनुसार पॉलिसीज, अगर अपने अच्छाई, अपने भले के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए स्टेट का इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहें, तो वो लीवर्स एग्जिस्ट नहीं करते जो सोसाइटी पुल कर सके। दोज लीवर्स डोंट एग्जिस्ट दैट विल एनेबल द स्टेट, और दैट विल फोर्स द स्टेट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द सोसाइटी। तो यदि हम, तो अगर हम कश्मीर से थोड़ा डाइवर्जन लेके अगर हम केरला जाते हैं, तो केरला में सबसे बड़ी न्यूज अभी कुछ हाल के वर्षों में थी शबरीमला। तो शबरीमला पे जो ये एक आघात हुआ केरला के हिंदुओं की आस्था पे, वो शबरीमला में बहुत क्लियरली दिखाई देता है। और वहां पे जो हिंदू समाज है, जो कि बीजेपी रूल्ड स्टेट भी नहीं है, वहां लाखों की संख्या में हिंदू सड़कों पर आए। तो ऐसा नहीं है कि जब हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम सड़कों पर नहीं आ सकते, आ भी जाते हैं, जैसे कि शबरीमला के केस में आए। लेकिन आज भी शबरीमला जो है वो एक, इट इज हंग इन मिड एयर, मतलब वो आसमान से गिरा खजूर पे अटका हुआ है। अभी भी उसका क्लियर आउटकम नहीं है कि क्या वो धर्म के अनुसार ही वो मंदिर जो है वो वैसे चलेगा, या जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के में बैठे जज जो कंप्लीटली डीरेसिनेटेड हैं, क्या वो बताएंगे कि किस तरह से हिंदुओं को पूजा करनी चाहिए। तो ये जो लाखों की संख्या में आए, और उसके बावजूद जो क्लियर वर्डिक्ट और क्लियर हमारे फेवर में अभी भी सिचुएशन नहीं है, वो दिखाता है कि जो समाज है, चाहे वो एकत्रित भी हो जाए, जब तक स्टेट उसके हाथ में नहीं है तब तक वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो हिंदू सोसाइटी somehow does not acknowledge it, perhaps because we have come out of an 800-year period of slavery। तो इसलिए हमें किस तरह से स्टेट को और किस तरह से पावर को यूज करना है वही हम नहीं जानते। तो इस संदर्भ में जब हम कश्मीरी हिंदुओं की बात करते हैं तो अक्सर ये बोला जाता है, और ये जब से 1990 में जब से पलायन हुआ हमारा, तब से, मैं तो बच्चा था, मैं तो 10 साल का था, तब से आज तक जो मैं ये देख रहा हूं कि किस तरह से भारतीय सरकार कश्मीरी हिंदुओं को डिसयूनाइटेड और इस तरह के आरोप लगा के जो मैनिपुलेशन करती है, वो बहुत डेंजरस है। और वो किसी तरह से वो इंटरनलाइज, उनका ही वो जो वो बहाने देते हैं, उनका ही वो बहाने हम इंटरनलाइज करके अपने आप को गाली देते हैं। इतना ज्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत नहीं है। बात ऐसी है कि जब कश्मीरी हिंदू समाज ये कहता है कि हम मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते, तो जो भारतीय राज्य है उसके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को किस तरह से, मतलब जो उसका डीएनए है 1947 में, जो उसका डीएनए बन गया सेक्युलरिज्म और ये जो बंटवारे के बाद जो हुआ, तो उसके लिए कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाती है। और वो इस चीज को रिकंसाइल नहीं कर सकता, ना ही वो मेंटली रिकंसाइल कर सकता है, ना ही वो इंटेलेक्चुअली कर सकता है, और ना ही वो फिजिकली इस बात के लिए कोई प्लान बना सकता है कि हाँ, ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम है हिंदू मुस्लिम कोएग्जिस्टेंस की, जो पूरे भारत की प्रॉब्लम है। पर कश्मीर में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि कश्मीर में हम आउटनंबर्ड थे। तो जब वहां पे ऐसी प्रॉब्लम उनको सामने सामने दिखाई देती है तो वो उसको डिनाई कर देते हैं।
चाहे वो कोई भी सरकार हो। वो कहते हैं नहीं नहीं कश्मीरियत थी, नहीं नहीं बहुत बढ़िया था पहले, लेकिन फिर पाकिस्तान आ गया, जैसे पुष्पेंद्र जी ने बोला कि नहीं पाकिस्तान आ गया, और हम भी वही चीज बार बार रिपीट करते हैं। पर ये प्रोपेगेंडा जो है ये ऊपर से स्टेट से आता है कि नहीं नहीं वहां पर सब ठीक था, अब प्रॉब्लम हो गई थी, और अब अगर हम वापस चले जाएं तो अब सब कुछ सही है। तो जब आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ, उसके बाद मैंने भी जश्न मनाया, हमारे घर में मिठाई बटी, लेकिन वो कुछ दिन की बात थी। लेकिन आज जब आर्टिकल 370 के हटने के बाद आज क्या सिचुएशन है? क्या कश्मीर सभ्यतागत दृष्टि से भारत का अंग है? तो केवल टेरिटोरियली एक पार्ट है, लेकिन सिविलाइजेशनली वी हैव लॉस्ट कश्मीर बिकॉज डेमोग्राफिकली कश्मीर इज 100%, almost 100% Muslim. So we do not have that kind of power over Kashmir. It is only on paper that it is part of India. वहाँ के लोग, वहाँ का कोई भी जो आम जनता है वो भारत और हिंदू से घृणा करते हैं, वो नफरत करते हैं, और इसलिए वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन हम क्योंकि एक सेक्युलर स्टेट है, हम वो उस तरह का जो एक पोजेशन है वो हम कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर ही, हमारी मशीनरी में ही फॉल्ट है, हमारे साइकी में फॉल्ट है, हमारी सोच में ही गड़बड़ है। तो जब हम ओनस समाज पर डाल दें, जो काम सरकार का है, जैसे एक और बात हमारी हुई थी कि जैसे पुष्पेंद्र जी ने कहा कि जब भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि स्वच्छ भारत हो, और किस तरह से वो इशारों में बात कर रहे हैं, लेकिन उसी पैरेलल में जो उनके मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के, जो स्कूल टेक्स्ट बुक्स का जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब वो स्कूल ये प्राउडली ये बोलते हैं कि हम 8 साल से 6 साल से सरकार में हैं और हमने एक शब्द स्कूल टेक्स्ट बुक्स का नहीं बदला, तो ये हमें क्या दिखाता है? ये समाज अपने ऊपर क्यों ले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्योंकि जब आपने एक शब्द नहीं बदला तो हर साल, अगर 8 साल हुए तो 8 generations of kids have come out of the same education system believing in that all that nonsense, that anti-Hindu bias that those school books carry, and these become future empowered bureaucrats, citizens, whoever, जिस भी दिशा में वो जाते हैं, और वो इस जहर को अपने दिमाग में लेके जाते हैं। घर वाले कितना समझा देंगे, जितना घर वालों को भी कितना समझ है, घर वाले भी कितना समझाएंगे, लेकिन ये जो इंडोक्ट्रिनेशन इंडियन स्टेट अपने सिटीजन्स की कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी समाज कैसे ले सकता है? तो कहने का मतलब ये है मेरा, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि जो रिस्पॉन्स कश्मीर की तरफ भारत के समाज का होना चाहिए, उसका स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है, और जब तक समाज स्टेट को टेम नहीं करता, स्टेट के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत नहीं करता, तब तक समाज कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला। तो सॉरी, मतलब अगर ये इफ इट कम्स अक्रॉस एज पेसिमिस्टिक, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस यू टेक कंट्रोल ऑफ द स्टेट, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, एंड दैट कंट्रोल कैन नॉट हैपन जस्ट बाय वोटिंग वंस। आपको प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने पड़ेंगे, वहां पे समाज की जिम्मेदारी जरूर है। थिंक टैंक्स कहाँ हैं हिंदुओं के, मीडिया आउटलेट्स कहाँ हैं हिंदुओं के, जो कि स्टेट को प्रेशराइज करें और जिस तरह का नैरेटिव बनाना है वो बिल्ड करें। और नैरेटिव बिल्डिंग में सबसे बड़ा काम होगा टू क्रिएट दैट इंट्रांसिजेंट माइनॉरिटी जिसकी मैं बात कर रहा था। आपको सबको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, आपको 15-20% लोग चाहिए अपने साथ, और वो नैरेटिव आपका बन चुका। जिस तरह से सीएए में हुआ, तो मैं सीएए का एग्जांपल लेता हूं, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब आया, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे देश के लिए, कि पहली बार किसी सरकार ने ये कहा कि हम जो भी परसिक्यूटेड हिंदूज हैं बाकी हमारे नेबरिंग कंट्रीज में, उनके लिए हम एक नेचुरल होम है। हालांकि उसका जो आउटकम है, उसका जो इफेक्ट है, वो केवल 30,000 लोगों तक ही सीमित था, जो 2014 31 दिसंबर 2014 से पहले आए थे। तो उसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट कुछ नहीं था। 30,000 लोगों को वैसे भी एडजस्ट कर सकती थी सरकार, लेकिन वो एक स्टेटमेंट था, वो एक सिविलाइजेशनल इंटेंट का स्टेटमेंट था। तो वो सिविलाइजेशनल इंटेंट का स्टेटमेंट देने से पहले अगर नैरेटिव बिल्डिंग हुई होती तो ये हाल शाहीन बाग वाला नहीं होता, लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग नहीं हुई। स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई बिल पारित करना है तो उसके लिए एक नैरेटिव बनाया जाता है, वो नैरेटिव कहीं पे भी नहीं था, और वो जॉइंट फेलियर है स्टेट का भी और
समाज का तो है ही है, क्योंकि समाज तो एम्पावर्ड है ही नहीं भारत में। तो जो नैरेटिव बिल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समाज की और स्टेट की, दोनों की है, और इसमें हम समाज को किसी हद तक जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। लेकिन जो पॉलिसी है, जिस तरह से अभी जो सबसे बड़ा खतरा कश्मीरी हिंदुओं के लिए है, वो ये है कि जो भारतीय सरकार ही है वही वहां पे एनक्लेव्स बना के, वहां पे जॉब्स क्रिएट करके ये बोला जा रहा है कि आप वापस चले जाइए। और उसमें बहुत सारी कश्मीरी हिंदू समाज में ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन अपॉर्चुनिटीज को, क्योंकि मटेरियली बेनिफिशियल है कि मामा नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी तो सब हिंदू एक यूनिवर्सल ट्रेट है हिंदुओं में, सरकारी नौकरी के पीछे तो भागते ही हैं। तो सरकारी नौकरी वहां पे अगर आप क्रिएट करते हैं हिंदुओं के लिए, तो आप उनको एक तरह से एक ब्राइब दे रहे हैं, एक तरह की रिश्वत है कि आप वहां चले जाओ। और ये बताया जाएगा कि देखो ये 5,000 ये 10,000 लोग जो हमने स्टेट गवर्नमेंट में जॉब्स ओपन किए, ये 5,000 10,000 लोग चले गए, अब कश्मीर की हालत नॉर्मल है, तो अब कोई भी जा सकता है। जो 10,000 20,000 भी चले जाएं, लेकिन जो बाकी लाखों जो नहीं गए, वो उनके ऊपर जिम्मेदारी थोप दी जाएगी कि देखिए ये लोग तो नहीं गए क्योंकि ये अब वेल सेटल्ड हैं, कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, कोई दिल्ली में है, कोई पुणे में है, लेकिन जिनको जाना था वो चले गए। इसी तरह से जो जाना चाहता है वो जा सकता है। ये इंडियन स्टेट कर रहा है, और इसका जो नैरेटिव पे इम्पैक्ट है वो शायद हिंदू नहीं समझ पाते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हाँ हाँ अच्छी बात है, उन्हें तो पता नहीं कि वहां पे क्या होगा। कल को जो ये अजय भारती के साथ हुआ पिछले साल, कि वो सरपंच बने और उनको गोली से उड़ा दिया, या अभी हाल में जो ये पंजाबी बिजनेसमैन थे जिन्होंने वहां पे शोरूम खोला था, उनकी अभी हत्या हो गई, क्योंकि ये क्लियर मैसेज था जिहादियों की तरफ से कि देखिए आप यहाँ पे ज्यादा हीरो बनेंगे तो आपको उड़ा दिया जाएगा। ये क्लियर मैसेज था, लेकिन भारतीय सरकार उस मैसेज को किस तरह से प्रोजेक्ट कर रही है कि नहीं नहीं वहां तो सब ठीक है, आप वापस चले जाइए, आपके लिए सरकार नौकरियां क्रिएट कर रही है। क्या हम नौकरियों की वजह से निकले थे? दूसरी बात कि ये कई बार बोला जाता है कि कश्मीरी पंडितों को या कश्मीरी हिंदुओं को आर्म्स अगर दिए जाएं तो वो बहुत बढ़िया रहेगा, आर्म्स की ट्रेनिंग दी जाए और वो वापस भेज दिए जाएंगे और उसके बाद वो वहां पे रेजिस्टेंस दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक डिल्यूडेड स्टेटमेंट है, क्योंकि जिस जगह पे मुस्लिम मेजॉरिटी कश्मीर, जहाँ की आबो हवा ही अलग है, जो 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 आप मतलब अगर आप कहीं किसी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में नहीं रहे तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक स्टेट जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, एक पूरा एरिया, एक पूरा वैली जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, वहां पे एक दिन काटना हिंदू के लिए क्या हो सकता है। इस स्टेट में जहां आर्मी सिक्योर नहीं है, जहां आए दिन आर्मी पे हमले होते हैं, और जो इतनी ऑर्गेनाइज्ड, और हम मतलब ये तो सबको ही पता है कि इंडियन आर्मी कितनी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इतनी प्रोफेशनल, इतनी वेल ट्रेन्ड, इतनी वेल इक्विप्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो वो वहां सरवाइव नहीं कर सकते विदाउट लूजिंग मैन, तो आप एक आम सिविलियन जिसके पास बंदूक भी होगी उससे क्या हो जाएगा? तो ये कुछ डिल्यूजन्स हैं जो हिंदू समाज में अपने आप ये इंफॉर्मेशन के ओवरलोड के कारण बनते रहते हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को पूरी करनी है। और मेरा मैं अपनी बात इतने में पूरी करूंगा कि 4 चीजें मैं यहां बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई ऑन ग्राउंड तो है ही है, लेकिन ये लड़ाई मेंटल लेवल पे जो है वो नैरेटिव्स की लड़ाई है। कि नैरेटिव क्या, इस्लामिक नैरेटिव कश्मीर में जीतेगा कि या धार्मिक नैरेटिव कश्मीर में जीतेगा। और अगर आप धार्मिक नैरेटिव की बात करते हैं तो सिविलाइजेशनल बैटल, जो मैं बार बार बोलता हूं इसको कि दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, दिस इज अ सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम, तो सिविलाइजेशनल स्लैश रिलीजियस प्रॉब्लम, क्योंकि ये है तो हिंदू मुस्लिम झगड़ा और कुछ नहीं है। तो अगर आप इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करते तो आप मतलब स्टार्ट से पहले ही आप युद्ध में हार गए, आप पराजित हो। तो सबसे पहले तो ये रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि ये रिलीजियस सिविलाइजेशनल बैटल है, और ये रिकॉग्निशन स्टेट की तरफ से आना चाहिए। लोग तो मानते ही मानते हैं, हम तो आपस में बात करते हैं, जितना ये इस नैरेटिव को हम फैलाएंगे उतना वो फैलेगा, बहुत सारे लोग जान जाएंगे। हम लोग वीडियो बनाते हैं अपवर्ड में, लाखों लाखों लोग देखते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, लेकिन वो हमारा काम है, वो हम पूरा करेंगे। लेकिन क्या स्टेट इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये रिलीजियस बैटल है? ये हमारा, ये
ये चीज हमारे लिए एक पॉइंटर है, ये हमारा एक्शन आइटम है। दूसरा कि हमें जो रिस्पॉन्स वर्कआउट करना है वो रिस्पॉन्स भी लॉन्ग टर्म होगा। देखिए मेरा मानना है, और मैं बिल्कुल पॉलिटिकली इनकरेक्ट और साफ साफ शब्दों में कहूंगा, मेरा मानना है कि कश्मीरी हिंदू कश्मीर वापस अभी नहीं जा सकते। और हमारी जो स्ट्रगल है वो है कि हमारे अपना जो कल्चर है वो किसी तरह जो उसके बीज हैं वो हम सुरक्षित रखें, ताकि आज से 10 साल 20 साल 30 साल जब भी वो सिचुएशन इमर्ज हो, जब हम वापस जा सकते हैं बाकी हिंदुओं के साथ भी, तो तब हम वो वापस कल्चर को रिवाइव कर सकें। तो ये हमारा टास्क है। पर जो लार्जर हिंदू समाज है उसके लिए कश्मीर एग्जिस्टेंशियल है हमारी तरह, हमारे लिए तो हो चुका जो होना था। लेकिन जो बाकी का हिंदू समाज है उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कश्मीर में क्या हुआ और जो बाकी जगह कश्मीर होने जा रहा है। जैसे कि पुष्पेंद्र जी ने कहा था कि ऐसा कहीं नहीं हुआ था कि इतने लाखों लोगों को सिर्फ इसलिए निकाला गया किसी जगह से क्योंकि उनकी पूजा पद्धति इस्लाम के विरुद्ध थी। ये भारत में और कहीं नहीं हुआ। लेकिन मैं हम्बली ये कहना चाहूंगा कि ऐसा होगा और बहुत जगह से होगा। तो इसलिए जो हो गया वो हो गया, लेकिन आगे के लिए जो हिंदू समाज है उसको ये दे हैव टू टेक स्टॉक ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड वर्क आउट अ रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। तीसरा है कि जो मैं वापस अपनी उस बात को दोहराऊंगा कि हमें स्टेट को फ्री पास नहीं दे सकते हम। हमें स्टेट को यूज करके कश्मीर को सिविलाइजेशनली वापस अपने साथ इंटीग्रेट करना है। वो स्टेट के बिना नहीं हो सकता, वो सरकार के बिना नहीं हो सकता। और हम सरकार के साथ जितना कड़ा रुख अपनाए, चाहे भले वो हमारी सरकार हो जिसको हमने वोट किया है, जब तक वो नहीं होगा, जब तक हम ये कहें कि नहीं नहीं इन्होंने तो अपना काम कर दिया अब हमें अपना काम करना है, हमारा काम स्टेट का काम नहीं है। स्टेट को जो काम करना है वो हमें करवाना है। और इसलिए निरंतर उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना और कॉम्प्रोमाइज ना करना। कि जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि अभी आप नौकरियों के लिए वापस चले जाएंगे, तो लार्जर हिंदू समाज को ये प्रश्न उठाना चाहिए कि क्या वो नौकरियों के लिए निकले थे? कल को हमारे साथ ऐसा हो जाए, कल को बंगाल में ऐसा पलायन हो जाए, क्या उनको नौकरियां देके वापस भेजोगे? तो ये बड़ी बात है। और इसमें जो फेलियर है समाज का, वो मैं मानता हूं कि एक सेक्शन समाज का हमेशा ऐसा रहेगा जो इन छोटी छोटी ब्राइब्स को वो लेने के लिए तैयार हो जाए। जैसे कि आज भी जब हम आंध्रा में जो क्रिश्चियन कन्वर्जन्स हो रहे हैं, वहां पे भी ऐसा ही हो रहा है ना कि छोटी छोटी इनसे किसी को नौकरी मिल गई, किसी को जमीन दे दी, किसी को कोई थोड़ा बहुत पैसा मिल गया, उसकी वजह से कन्वर्जन्स होते हैं। तो ऐसा समाज, ऐसे वल्नरेबल सेक्शंस सोसाइटी में हमेशा होते हैं। पर उसको हम एक्सट्रापोलेट करके ये नहीं बोल सकते कि पूरा समाज बर्बाद है, ऐसा नहीं है। उस छोटे से तबके का एग्जाम्पल यूज करके आपको मैनिपुलेट किया जाएगा और आपकी वैलिडिटी खत्म कर दी जाएगी। ऐसा हमेशा होता आ रहा है और ऐसा ही होगा। तो ये चीज क्लियर है। और जो समाज का रोल है, चौथा पॉइंट मेरा वो है कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, कि हम बाकी सिविलाइजेशंस के मुकाबले, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं चाहे वो मुस्लिम्स हैं, उनके मुकाबले हम बहुत पीछे हैं। क्योंकि वे लोग एक तो ग्लोबल मेजॉरिटी में है, और ग्लोबल मेजॉरिटी होने के कारण उनके अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अपने मीडिया आउटलेट्स हैं, उनके अपने थिंक टैंक्स हैं, यहाँ तक कि उनके अपने स्टेट हैं। अपने स्टेट के द्वारा वो अपनी मनमानी करते हैं। और जो मिशनरीज का काम है वो आज का नहीं, वो कॉलोनियल टाइम से वो भारत में आते रहे हैं और कन्वर्जन करते रहे हैं। और ये उनका जियोपॉलिटिकल और रिलीजियस स्ट्रैटेजी उनकी एक ही है। तो इसलिए हम लोग जो हैं वो अभी कई 100 साल पीछे हैं उस लड़ाई में, कि जहां हमारे इंस्टीट्यूशंस हो, थिंक टैंक्स हो, मीडिया आउटलेट्स हो, और उनकी एब्सेंस में हम इसी तरह सफर करते रहेंगे। और हम अपना नैरेटिव्स अपने चार दीवारी, ड्राइंग रूम की चार दीवारी के बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर आप कोई भी चीज को अगर आप एक्शन आइटम के रूप में देखते हैं, तो सोच तो लिया हमने जो सोचना है, जितने हमारे कंसेंसस है मैटर्स पे वो क्लियर है, वो तो रिफाइन होता रहता है कि अच्छा ये चीज ए को एक्स नहीं वाई, वो थोड़े बहुत डिफरेंसेस 19-20 का अंतर विचारधारा में, विचारों में, वो हमेशा रहता है। तो उसके ऊपर हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। वी डू नॉट वांट टू विन द आर्ग्यूमेंट, वी वांट टू विन। तो उसके लिए जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है, उसके लिए फंड्स जोड़ना, उसके लिए जो जिस तरह की कॉन्शियसनेस है वो बिल्ड करना, जिस तरह का कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स हैं, और समाज को किस तरह से
मूव करना है कि ये चीजें पॉसिबल हो, जो इंडिविजुअल थिंक टैंक्स, इंडिविजुअल प्राइवेट लेवल पे जो किया जा सकता है, वो क्लियरली डिमार्केट करके एक्शन ओरिएंटेड काम करें। जब तक वो नहीं होगा तब तक कश्मीर तो बनते ही रहेंगे। मुझे लगता है कि हम जो एकमात्र देश हमारे हाथ में अब है, जिसे हम भारत, अपनी भूमि जो हमारी है वो भी हमारे हाथ से चली जाएगी, क्योंकि अगली बार बंटवारा नहीं होगा, कोई विभाजन फिर से नहीं होगा, अगली बार पूरी तरह इस्लामीकरण ही होगा। तो इसके साथ मैं अपने ये पॉइंट्स यहाँ पे समाप्त करता हूँ, मेरा समय भी खत्म हो गया। तो अगर कोई प्रश्न होंगे तो मैं अवश्य उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। Thank you so much, Ashish ji. It's always a pleasure hearing you. And of course, we will take up some questions if time permits. So we'll quickly move on to the last session where there are some members of the Kashmiri Pandit community from here in Australia. So I'll just ask them one by one to share their stories briefly if they can. So Shivam, if you can hear me. Hello. Yeah, Namaskar. Shivam, if you can start your video. Yeah, I'm just starting the video. Yes, you're visible. So Shivam, as I said, you are a Kashmiri Pandit yourself and you have gone through that horrible experience yourself. So it would be great if you can share your experiences with all of us. Over to you. Thank you so much for, firstly, for providing this opportunity, and it's been quite enriching to hear the opinions as well as some very valid arguments being raised here. In terms of my experience, if I were to say, I was born in Kashmir and I was there for almost the first 6-7 years of my life. तो पहले 6 से 7 साल में जो हमारे experiences थे, I would be fully in agreement with Mr. Ashish, what Mr. Ashish Dhar was talking about, because I could clearly see the kind of oppression that was there in the society. एकदम पूरा एक दबदबा सा था मुस्लिम्स का वहाँ पे, जो कश्मीरी मुस्लिम्स थे, और कश्मीरी पंडित्स का the attitude was like completely survival, and it was basically a survival mindset. I can sort of cite some examples personally that I had to face. Like as a 3 or 4 year old, it was quite shocking for me when people would call names to Kashmiri women, mothers and sisters walking in the streets, and how those cat calling and all of that used to happen. So that was a point of time around 87, 88 when, the militancy was just beginning. People were possibly migrating across the border and getting trained. And that came to fruition around 89, 90 when things came to a boil. एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट दृश्य है जो अभी तक मेरे जहन में है, मेरे ख्याल से वो 19th जनवरी 1990 या 20th जनवरी 1990 के आसपास का सीन था, जब ऑलमोस्ट 1 लाख से 1.5 लाख लोग एक साथ जुलूस में बाहर हमने देखे कि निकल पड़े हैं। पूरा कश्मीर, सारे जितने भी वहाँ पे बसेस, मैटाडोर्स वगैरह निकल पड़े थे, एंड सब जगह पाकिस्तान के झंडे, और आगे जो थे सबसे आगे लोग, उन्होंने कफन पहने हुए थे, और आज़ादी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरी पंडितों यहाँ से चले जाओ, इस टाइप के नारे चल रहे थे। तो बिल्कुल क्लियर हो गया था कि यहाँ तो सर्वाइव करना भी अब इम्पॉसिबल है। जो पिछले 100, 200, 500 सालों से कश्मीरी पंडित बेचारे एक सर्वाइवल मोड में थे कि जैसे तैसे जिंदगी बस यहाँ से बसर करनी है, वो भी इम्पॉसिबल हो गया था। उस माहौल के मद्देनज़र हम लोग वहाँ से फिर निकल गए। वी हैड टू माइग्रेट टू जम्मू, like all the other Kashmiri Pandits or Kashmiri Hindus from the valley. And from there, we moved on eventually to Delhi and Noida. Noida is where all my education happened. But, the scars of those early memories would always stay with me and even haunt me, because what we had seen, it was like, I don't think it was something normal. The amount of death we had seen, चारों तरफ आपके जितने भी religious symbols थे, एक ऐसा टाइम था जब हम देख रहे थे ऊपर से घर में से कि वहाँ एक तरफ मंदिर में आग लगी हुई है, दूसरी तरफ मंदिर में आग लगी हुई है. You could just see all the temples being burned to flames. People, you were hearing about people being killed, and
curfews all the time, no schools, just that atmosphere of fear jo tha wahan pe, that was something which really was hitting the psyche of all the people, all the Kashmiri Pandit people. You didn't know whether you would survive the next day or go on from there. So to come out of that and really move on in life, I think it's been something like, it's been a fight, a daily fight that we have had to live. And this particular day that we are really marking this so-called event of 19th of January, this is actually like a scar. It's a blot on the face of India. It's a scar in all of our memories, not just Hindus or Kashmiri Hindus, but the whole of India, because I don't think this should have happened. But unfortunately, this was the only thing that we could have done to survive and really keep our race alive, because otherwise we would have possibly been finished had we stayed there. And I would also agree with what I heard earlier from Mr. Ashish Dar कि अभी काफ़ी बात हो रही है, आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया, सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है कश्मीर में. बीजेपी ने जो अभी रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस हैं उसमें कुछ सीटें भी जीती हैं. So is it normal? People are asking, are Kashmiri Pandits going back home? I would say no at this point of time, because what is the guarantee that tomorrow we'll again become sitting ducks for people to just target and just butcher this already minuscule minority of a population, when even the army and when even the other politicians and all your panchayat mein jo panch hai, they are not safe. How can we be safe in that situation? I don't think I'm ready to go back to that sort of a life where I have to live as a fearful minority, not knowing what is going to be the safety of me, my wife, my kids, my parents, living under that sword of Islamic civilization that would be always hanging on your neck. So I think that's what I would like to conclude with. But let's hope on a positive front that things work out for the better, and the Indian civilization and the Indian ethos is able to overcome and really assimilate Kashmir in its entirety and take it back to that old cultural ethos, as well as that cultural high that was always there even before the conquest of Islam that happened in the Kashmir Valley. Yeah. Thank you, Shivam, for sharing your thoughts. And we had other few speakers from the KB community lined up, but I think we have overshot our time, and our guests need to leave and they have to attend other sessions. So I'll just request Sai Paravastuji to please share his thank you note on behalf of the Hindu Council of Australia. Sai ji. Yeah, thank you, Vivek ji. It was really wonderful to hear all the speakers, and on behalf of Hindu Council of Australia, it's my great pleasure to extend a hearty vote of thanks to the panel speakers, Shri Suresh Chawanke ji, Pushpendra Kurukshetra ji, and Ashish Dar ji. We really appreciate your valuable time from your busy schedule to speak to this, to mark and pay respects to the lives lost, displaced by a genocidal campaign by the Islamic militants. To me, it's more than a Holocaust. There hasn't been any such a human loss in anywhere in the world. We did support this movement when it originally started, and in marking this day as respect for Kashmiri Hindus lost in temples every year. But this year, we are so blessed to have this panel who could speak about this and bring more information to the community. Major Gaurav Arya ji, we definitely missed you today, but we look forward to hearing from you again in another panel soon. I would also like to thank all the community leaders, organizations, including many of our Kashmiri Hindus who joined us today online.
I'd like to thank our volunteers and organizing committee who has been planning this since late November last year. Our president, Shri Prakash Mehta ji, is watching it on YouTube. He couldn't join due to some technical challenges on his laptop online on Zoom, so he couldn't be here to thank today. And I'm just thanking on behalf of Hindu Council. We'd also like to thank all the participants who joined us online via various channels, Facebook, YouTube, Zoom. Last but not least, the backend technology team, our web and social media team, and especially thanks to Vivek Singh ji, who has spent more time and energy in making this event and bringing this for all of us here. We hope everyone enjoyed this presentation, and we look forward to bringing such informative events in future. Thank you. Namaskar. Thank you, Sai ji. Thank you so much. And I'll just like to thank everyone once again for taking up time from their busy schedule, especially Pushpendra ji. Sorry, थोड़ा time के लिए confusion हुआ, but बहुत अच्छा लगा कि अब आपने 10 मिनट के short notice पे आपने एकदम अपनी availability हमें दी और अपने thoughts हमारे साथ share किए. And I'm sure when when the video goes there on the Facebook page, so a lot of people will be watching this over and over again for the period of next couple of weeks, and they'll definitely get enlightened about the way things work on ground and how we have to change our mindset. So thank you so much for sharing your thoughts, Pushpendra ji. Ashish ji, thank you so much for joining us, and Suresh Chawanke ji, if you're still there, thank you so much for your time, and we look forward to having you again on more such discussions. And thank you so much for your time today once again. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Namaskar. Thank you everyone. Thank you everyone for joining us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. सभी को नमस्ते.